Hello and namaskar to everyone. This is Saurav once again from Project Nomad. And before we start, I would like to request one thing to all our listeners. The thing is that during this entire session, you will hear some new words, you will hear new ideas, new theories, new research, and many more things. So, my request to all is to listen to this session with a very open mindset, and once you hear the session, carry out your own research and find out the truth yourself. Our objective for this session is to give you an idea of an alternative school of thoughts, ideas, theories, research, and many more. So let's begin, and I welcome Johan. He is with me today. Hi, Johan. How are you? Hey Saurav, hi. Thank you so much for having me. It's a pleasure to be with you today. Great, great. So we have generated a little, quite a long list of questions. We have generated the question in two ways. One is my own research, and the second is from a few of the followers or volunteers of Project Nomad who follow us. We have told them, we have already informed them that we are going to have a live session with Johan. So do your own research, find out some questions, and share with us. And we have reframed those questions in a easier way. So before we start, let's have a small introduction of yourself. Tell us something about yourself and also how the AFF movement originated and what inspired you to start such a movement. I've belabored the story many times in different videos, but I'll summarize it again for your audience. Basically, what happened is 5 years ago, I was going through a very hard time in my life, and it's mostly when you are going through these times that the stress or the situation itself makes you kind of look inward or makes you want to know deeper meaning in life. Until that point, it's all rosy and you're just okay going with the system in general. But when I was at that point in my life, that's when I really wanted to know some deeper things like who are we, where are we? Just the basic questions that science doesn't have answers for yet. Which, as I started researching those areas, I found that there were schools of thought that had very good explanations for those subjects. Like I'm talking about say new age kind of material or what we are calling frontier science today with respect to near death experience research, past lives, psychics, mediums, the nature of consciousness, quantum physics. Very good explanations available, but we somehow don't hear that in the education system or in the mainstream media in general. Or it's given lip service to. We're barely told about any of that. So once I found out that there's a good explanation, contrary to the two defaults that most people usually jump to, either it's religion, like you subscribe to a religion, or you subscribe to just atheism, or scientism, the belief in the scientific institutions. It's not really a belief in science, but anyway. So most people tend to fit into those two categories. So once I found out that there was a credible explanation, which is as almost I would say more credible than any of those two, but we're not being told about it in the institutions or just the structures that run society in general. That's when I know these things started coming to my mind that okay, if this is what we're not being told, then what else is it that we're not being told? Because once you figure out you've been lied to about something or you've been kept in the dark about something, it automatically generates that curiosity that okay, maybe there's something more that they're not telling us, or I should be open to at least looking into those areas and seeing if I find out something. So then I started looking into uh, certain subjects that were exposing the truth about what's going on our planet. So initially I started out with material that was questioning just things on a spiritual level. But then once it's like when you start walking on the path of truth, you want to know the whole picture. You're not just satisfied with knowing one area of it. So a couple of channels and outlets that were covering the spiritual side of things, they were also covering like what's wrong on the planet and what we are being not told with respect to geopolitics, with respect to terror attacks, with respect to the nature of money and the banking system, which is very important with respect to how we are severely being controlled today, with respect to like certain agendas that certain powerful people on the planet have, which they've openly spoken and written about, but we somehow don't hear about them because these same people control the media as well and the education system also, which we'll go into later. But it's just these areas that were exposing what's wrong on the planet that started coming into my research, and
long story short, basically once I was done getting a handle, at least I was at the point where I understood that okay, I still have to do more research and come to my own conclusions about things, but at least I was sure that you know these areas there's a lot more to know about and we're not being given the whole story. And there's one point where I came across this author called David Icke in a documentary called Thrive, and that motivated me to see his all-day lecture, because in that documentary there were many kinds of people. There was Vandana Shiva was there, and Deepak Chopra was there, and there were those kinds of people who weren't really talking about the conspiracy in general. They were talking about their own field. Like Vandana was talking about farmers' rights and GMOs and stuff, and Deepak was talking more about like the spiritual consciousness side of things. But David was probably one of the only people on the documentary who was really connecting all of that together and showing us that the suppression of consciousness and spirituality is fundamentally involved in the control systems today, and why they do that and to what end, like do they want to take us. So that's what motivated me to go into his research, because he's giving a very holistic view. People usually tend to specialize in their areas, but what I've noticed is when you start to get into this line of research where you're just questioning everything, you don't take anything that authority tells you at face value. You're just open to things. You don't have preconceived ideas. In that, it becomes very important to activate your right holistic side of the brain and be able to see connections between things, because your left side of the brain is very good at logic and just drilling down into things and getting to say the bottom of things, but you need your right side of the brain to work in conjunction with that in order to map out the whole picture and see the connections between things that don't really seem connected on the surface, but once you start to really go into it, you can see the apparent connection between these things. So that's when I saw his 9-hour lecture. So he did a full 9-hour lecture where he really put 20 years of research together. And that's when I was like, okay, this is not just something of interest for me, but it's something that's really concerning the planet and our future. And the timeline he was giving was very short. He was saying that some of these things that involve total slavery and subjugation of the human race are going to happen in the next 2 or 3 decades. That was the kind of timeline. So of course it's going to happen in the span of my life, and someone is going to come and tell me that you're going to be enslaved, and to the level that he's describing, it's really serious stuff. So that's when I started taking it more seriously, and I came to the point where I understood okay, in India there are barely very very few people who are really talking about this stuff or who have gone as deeply into it as I have. So I felt a moral obligation to firstly go deeper into those areas and come across my own research, because there's a difference when you're just consuming research from other people. You're taking their views, but if you want to really pioneer something, you need to have your own thoughts on the subject. You need to be an original researcher. So I spent 3 years doing that, formulating my opinions. There are many areas where I will disagree with Ike, as I will disagree with many people, because the whole point of this is not to even for the viewers today, it's not to just accept what I'm saying. I'm just telling you that there are multiple explanations, and what I'm saying I found to make the most sense, and this is what has been the most suppressed all this while. So I'm giving you the opportunity to let you know that there is this side of things that are not being told about, and I feel that everyone should start with a blank slate, do their own research, and make up their own conclusion about things. Yeah, so that's pretty much how I started off. So that's a great. I mean, for 3 or 4 years you have been doing this kind of a research, and this is great to know that at such a young age you have started this, because right now when I'm working working in the field of education at the age of 32, 33, मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार ये मैं अगर 5 साल पहले शुरू किया होता तो अच्छा होता, मैं और ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन जनरेट कर पाता और अवेयरनेस फैला पाता. ग्रेट थिंग. बट वाइल लिसनिंग टू यू, एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो ये है कि what is your idea of a good life? Now I know good is very subjective, but एक अच्छा life तुम्हारे हिसाब से क्या है? See, मेरे हिसाब से freedom is at the foundation of the human spirit. अगर हम फ्री नहीं है, और फ्रीडम का मतलब क्या है, मोस्ट लोगों को आप पूछोगे तो उनको फ्रीडम का मतलब पूछोगे, वो बोलेंगे हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये राइट्स दिए गए हैं, एंड उसका मतलब दोज कॉन्स्टिट्यूशन में जो पेपर में लिखे गए वो हमें हमारे राइट्स देते हैं. बट फ्रीडम का इतना ही मतलब है कि हमें हर वो चीज़ करने का हक होना चाहिए जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचता हो.
सो अगर आप मुझे आइडियल गुड लाइफ का डेफिनेशन पूछ रहे हो, सो मेरे हिसाब से गुड लाइफ नॉट जस्ट फॉर मी बट जो भी साथ में हमारे प्लानट में को एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमारे साथ जी रहे हैं, इट शुड बी द एबिलिटी कि हर आदमी को वो चीज़ करने का हक होना चाहिए जिससे वो किसी दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर ना करता हो। जैसे बोलते हैं कि माई फ्रीडम एंड्स वे योर फ्रीडम बिगिंस, राइट? सो खुद जो करना है करो, पर दूसरे पे इम्पोज मत करो। आज ये नहीं हो रहा है। आज हमारे पास स्टेट का सिस्टम है जिसपे हम अनार्की और स्टेटिज्म पे आगे बात करेंगे, पर ये जो स्टेट का सिस्टम है उसने बेसिकली हमें ये प्रोपागैंडाइज किया है हमारे दिमागों में कि हमारे पास जो राइट्स नहीं है, जो मेरे और आपके लिए करना गलत है, हम किसी थर्ड पार्टी को वोट दे सकते हैं और फिर वो थर्ड पार्टी जाके पार्लियामेंट में बैठ के ऐसी चीज़ें कर सकती है जो हमें करने का हक नहीं है। सो उदाहरण के लिए आपको बोलूँ कि अगर मैं और आप हमारी कम्युनिटी में से लोगों ने हमारे लिए वोट किया, ओके, और हम जाके लिखते हैं कि आज से सबका 20% इनकम हमारा हो जाएगा, ठीक है, तो अगर वो कंसेंट करते उस बात पे तो ठीक है, पर अगर वो कंसेंट नहीं करते तो हम उनसे जाके पैसा टैक्सेशन के नाम पे चुरा नहीं सकते। पर ये सेम चीज़ हमें ये सिखाया जाता है कि हम लोग सिर्फ वोट कर सकते हैं पॉलिटिशियंस के लिए, और ये लोग जाके ये जो सुपर ह्यूमन राइट्स है जो हमारे पास नहीं है वो ये कर सकते हैं। तो मेरा आइडियल लाइफ का, अगर हमें आइडियल लाइफ की तरफ मूव करना है तो हमें पहली बात तो मोरालिटी समझनी पड़ेगी कि राइट और रॉन्ग में अंतर क्या है, क्या हमें चीज़ करने का हक है, क्या नहीं है। और ये मैटर नहीं करता किसी के पास बैज है, वो लॉ इन्फोर्समेंट में है, वो पॉलिटिशियन है, वो गवर्नमेंट में काम करता है। गवर्नमेंट सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है, उसको उसके पास ऐसे कोई अधिकार नहीं है जो हमारे पास नहीं है। ऐसे होना चाहिए पर प्रैक्टिस में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है कि गवर्नमेंट ये मॉरल स्टैंडर्ड से एग्जेम्प्ट है, उन्हें उन्हें वो चीज़ करने का हक है जो हमें नहीं है, और मैं उसी को चैलेंज कर रहा हूँ। तो अगर हमें आइडियल लाइफ की तरफ मूव करना है तो आइडियल लाइफ में हर आदमी को हक होना चाहिए कि वो अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज कर सके, और उसको आइडियल लाइफ को अचीव करने के लिए हमें स्टेट की पावर को डिमिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें बचाने के सिवाय हमें और समस्याएं दे रहा है। अगर हम इसमें जाएंगे डिटेल में, बट स्टेट एक्चुअली आइडियल लाइफ को बर्बाद कर रहा है। ओके, आप अगर आइडियल लाइफ का आपके दिमाग में जो भी है, मेरा डेफिनेशन भी छोड़ दो, बट आपके दिमाग में जो भी है, आपको अपनी बॉडी में जो चीज़ डालना है उसका हक होना चाहिए, जो चीज़ नहीं डालनी है उसका हक नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में हम वैक्सीन से बाद में आएंगे, पर ये बेसिक आइडियल लाइफ का जो भी मतलब नॉर्मल लोग सोचेंगे कि मेरी आइडियल लाइफ होनी चाहिए, एटलीस्ट मुझे मेरे शरीर पे तो सॉवरेंटी होनी चाहिए ना, कि मैं डिसाइड कर पाऊँ मेरे शरीर, एटलीस्ट मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है, दूसरा सब छोड़ दो। पर आज तो हमारे पास वो राइट भी नहीं है। हेलमेट मैंडेटरी कर दिया, मतलब ये लोग आपको क्या कह रहे हैं कि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको अपनी खुद की बॉडी पे हेलमेट लगाना है अपने खुद के रिस्क के हिसाब से, पर कोई मैंडेट कर रहा है, और अगर आप आपकी शरीर को बचाओगे नहीं तो स्टेट आपको आके पनिश करेगा। ये कौन सा आइडियल लाइफ है? मतलब ये तो हमारी फ्री विल ही छीन रहे हैं ना हमसे। अगर खुद के लिए ही, मतलब मैं समझता हूँ कि लॉज ऐसे होने चाहिए जिससे अगर आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो सो देयर शुड बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर यू, बट वाइस और क्राइम में बहुत बड़ा अंतर है। वाइस ऐसी चीज होती है जो खुद को नुकसान पहुंचाती है, और हमारे जो लाइफ एक्सपीरियंस है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है हमारी, उसमें हमें फ्री विल दी गई है कि हम खुद मिस्टेक्स कर सके और उन मिस्टेक से सीख सके। पर स्टेट जो है, हम बहुत एरियाज में हमें वो मिस्टेक्स बनाने का हक छीन लेती है, जैसे कि ड्रग प्रोहिबिशन है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमें हमारी फ्री विल और सॉवरेंटी छीनी जाती है, और ये लोग ऐसे सोचते हैं कि वो हमें कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में लॉज बना के। मैं उतना ही कह रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से इमोरल है। जो हमारे पास हक नहीं है हम किसी को नहीं दे सकते। अगर आपके लिए गलत है ये करना, तो हम लोग किसी को डेलीगेट करके या वोट करके उन्हें ये हक नहीं दे सकते। यस, तो ये आइडियल लाइफ का मेरा बेसिक पिलर है। Great, great. And I agree to a large part of that. You are right, absolutely right. So, coming to the most trending topic right now, that is the कोविड सिचुएशन, दी कोरोना वायरस सिचुएशन, जिसमें कि पूरा जो दुनिया है वो एकदम स्टैंड स्टिल पे आ चुका है. And there is so much of mixed information coming out from everywhere. Even the professionals are divided in their own opinion and understanding about this. So एक तो दूसरी तरफ काफी सारे थ्योरीज भी आ रहे हैं, तो उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, we have lost all the ideas. So what is your understanding of everything that has happened in these last few months? बहुत बड़ा आंसर होगा, पर मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ Yeah. जो भी मेरी, मतलब बिकॉज
मैं इस मुद्दे पे कॉन्स्टेंटली 5 मंथ से ऑलमोस्ट एवरी डे एटलीस्ट 3 to 4 hours को डेडिकेट करता हूँ. स्टार्टिंग में ज़्यादा कर रहा था, इनफैक्ट स्टार्टिंग में आई वाज पुटिंग लॉट मोर आवर्स इन, क्योंकि इतना सारा डेटा निकल के आ रहा था कि उसको एनालाइज करके फिर अपने ओपिनियंस बनाना टाइम कंज्यूमिंग, उसको एफर्ट लगता है. और सिर्फ टेलीविजन पे किसी ने क्या बोला या सिर्फ अथॉरिटी में क्या बोला उसको एक्सेप्ट करना बेवकूफ़ी है, बिकॉज हम समझते हैं कि कॉन्ट्ररी एविडेंस भी बहुत सारा है. तो अगर आप सिर्फ अथॉरिटी में विश्वास करते हो तो फिर आपके ओपिनियंस काफ़ी स्क्यूड होंगे, और आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप उनके हिडन मोटिव्स क्या है. अगर आपको कोई कुछ चीज़ बोल रहा है तो उनके मोटिव्स भी क्वेश्चन करने की हमें आवश्यकता है. पर बेसिकली जो भी रिसर्च मैंने एनालाइज की है उसको अगर मैं समराइज करने जाऊँ तो इस सिचुएशन में छोटी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बना दिया है इन लोगों ने. मैं वायरस डिनायर नहीं हूँ. काफ़ी लोग जो कंस्पिरेसी रिसर्च में हैं वो ऐसे बोलते हैं कि वायरसेस एग्जिस्ट नहीं करते, या इट्स ऑल अबाउट योर टेरेन, जो आपका बॉडी है सिर्फ उसका ही है. मैं ऐसे नहीं मानता. मैं मानता हूँ कि वायरसेस और जो बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स है, ये सब अपना रोल प्ले करते हैं, पर ये आपके बॉडी में होल्ड और रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे जब तक आपका बॉडी का डिफेंस पावर, व्हाट एवर यू से, इम्यून सिस्टम इन जनरल, योर नेचुरल इम्यूनिटी, और आपका जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है विद रिस्पेक्ट टू मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड ऑल, एंड टॉक्सिसिटी बर्डन क्या है. अगर आपकी वो चीज़ें इम्बैलेंस्ड है, या से फॉर एग्जांपल रेडिएशन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है इसमें. अगर आप कॉन्स्टेंटली रोज वाईफाई में बेथ कर रहे हो और आप कुछ प्रोटेक्शन नहीं ले रहे, आपका फोन हर टाइम आपके कान पे रहता है, ये सब बॉडी इज लाइक अ सिनर्जी, इस पे एक बकेट रहता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अटैक करती है, और जब आपके बहुत सारे सिस्टम्स फेल होते हैं तब आपको सिम्टम्स दिखेंगे. ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आपने आज कुछ गलत कर दिया और आपको इमीडिएटली दिख जाएंगे, पर वो बॉडी की भी डिफेंस पावर काफ़ी रहती है. तो मेरे हिसाब से यस, कोरोना वायरस है. आई डोंट बिलीव दैट इट डजंट एग्जिस्ट, बट एट द सेम टाइम हमें अभी बहुत सारी रिसर्च, सॉलिड रिसर्च मिल रही है. पहले तो मैं सिर्फ अपनी न्यूट्रिशन साइंस और ह्यूमन बॉडी की समझ से बात कर रहा था, बट वी हैव रिसर्च टू बैक दिस अप टुडे कि ये लोग ट्रायल्स कर रहे हैं जहाँ पे ये पेशेंट्स को विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, और उससे काफ़ी आउटकम्स चेंज हो रहे हैं लोगों के क्लिनिकल ट्रायल्स में. मैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की बात कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन की भी बात नहीं कर रहा जहाँ पे ये देखते हैं कि इसका ब्लड लेवल कितना था और उसको क्या हुआ. ये लोग इंटरवीन कर रहे हैं, मतलब उस पेशेंट को दे रहे हैं विटामिन डी और उससे आउटकम्स चेंज हो रहे हैं. तो ये सबसे सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस माना जाता है साइंटिफिक फील्ड में, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स बोलते हैं. तो अभी हमारे पास ये ट्रायल्स है और रिसर्च जारी है. बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस पे और मेटाबॉलिक सिंड्रोम. ये सब जो चीज़ें हैं सब इम्पैक्ट करती है हम पे. हमारा टॉक्सिक बर्डन क्या है, हमारा हैवी मेटल स्टेटस, वो सब चीज़ इंटरेक्ट करती है. तो अगर आपका डिफेंस सही है, जो मैंने कुछ फैक्टर्स डिस्क्राइब किए बहुत है, पर अगर ये मेन फैक्टर्स सही है आपके, तो आपको ये इन्फेक्शंस छू नहीं सकती मेरे हिसाब से. और हमें अभी कोरोना वायरस के बारे में देखो, अगर कुछ लोग हैं ऑडियंस में जो वायरस में विश्वास नहीं रखते, तो हमें ये डिवीजन को, बेसिकली डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वायरस में मानते भी है ओके, उसका मोर्टालिटी रेट अभी, क्योंकि टेस्टिंग इतनी बढ़ गई है और ये लोग पूरी दुनिया में जाके इतना टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो टेस्टिंग के इंक्रीज से मोर्टालिटी रेट इतनी कम हो गई है कि अगर आप वायरस में नहीं मानते तो आपको लगेगा 0% रिस्क है. अगर आप वायरस में मानते हो और आप अगर अंडर 70 हो, तो ये सीडीसी का लास्ट एस्टिमेट है कि मोर्टालिटी रेट इज 0.004%. ठीक है, तो अभी आप मुझे बोलो कि उसमें डिवीजन की क्या जरूरत है, एक साइड पे 0 है, एक साइड पे इतना थोड़ा है. तो देयर इज नो नीड फॉर अस टू डिबेट अमंग आवरसेल्फ. जो वायरस में मानते हैं ठीक है, नहीं मानते वो भी ठीक है, हमें सब अपना ओपिनियन रखने का हक होना चाहिए. बट बॉटम लाइन यही है कि इतने कम मोर्टालिटी के वायरस के बेसिस पे आप पूरी दुनिया बंद नहीं कर सकते, और आपको कोलैटरल डैमेज ऑब्वियसली कंसिडर करना चाहिए. तो मेरे हिसाब से, तो मैंने आपको जैसे समझाया फ्रीडम का मतलब क्या है, ठीक है. तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे, ठीक है, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अपनी से फॉर एग्जांपल अपना बिजनेस चला रहा हूँ, आप इंडिविजुअल हो, आप प्रोजेक्ट नोमैड चला रहे हो, आप अपना यू आर डूइंग योर वर्क. तो अगर हम लोग ठीक है रिस्क से, ठीक है, अगर मैं ठीक हूँ इस कोरोना वायरस के स्टार्टिंग में भी, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं ठीक हूँ रिस्क एक्सेप्ट करने से कि मे बी मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा और मुझे कुछ हो जाएगा, इफ आई एम ओके एंड इफ यू आर ओके, गवर्नमेंट को ना आती हमें स्टॉप करने को. अगर कोई ओके नहीं है तो वो ऑब्वियसली घर पे रहेगा, राइट. ही इज गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल. और उसका मतलब भी क्या है, पीपल को हिस्ट्री की समझ नहीं है. हम इवॉल्व कैसे हुए हैं, क्योंकि हम
वायरसेस और बैक्टीरिया के बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी होते हैं। और ये मतलब एंटीबायोटिक्स के टाइम पे साइंटिस्ट सोच रहे थे कि हर बैक्टीरिया बुरा है या हर बैक्टीरिया ही कुछ इन्फेक्शन का कॉज है। और हमें हमें माइक्रोबायोम की साइंस से और जस्ट बेसिक जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स की साइंस से पता चल रहा है कि बैक्टीरिया बहुत अच्छे भी होते हैं। और हमारा गट माइक्रोबायोम जो है उसकी रिसर्च पायनियर हुई थी पहले, पर हमें अभी हमें पता चल रहा है कि हमारा ओरल माइक्रोबायोम है, हमारा स्किन पे माइक्रोबायोम है, और हमारे बॉडी में वायरोम भी है। उसमें 360 ट्रिलियन वायरसेस रहते हैं। हमारे सेल के अंदर डीएनए में वायरल जेनेटिक्स है। तो ये सब वी हैव इवॉल्वड विद दीस थिंग्स। तो ये एवोल्यूशन में क्या होता था कि अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा नहीं रख रहे और इफ यू आर अगर आप ससेप्टेबल हो कुछ डिजीज से क्योंकि आपने अपने बॉडी की केयर नहीं की है, तो वो एवोल्यूशनरी आपको वायरस आप पे टेक ओवर करके आप इट कैन अफेक्ट यू। So it is a way for the gene pool to kind of it sounds rude but to be honest that is a way for survival of the people who are at the front of their game, जो अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। और जो लोग नहीं ख्याल रख रहे उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो आज कॉन्वर्सेशन क्या बन गया है कि आप सिर्फ मास्क लगाओ या आप सिर्फ वैक्सीन लगाओ, वही सोल्यूशन है। पर अभी हमें पता चल रहा है कि अगर आप अपना विटामिन डी लेवल ऑप्टिमाइज करोगे तो आपका रिस्क ऑफ सिवियर फेटालिटी फ्रॉम कोविड इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट जीरो, अगर आप अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को फिर से रिक्लेम करोगे। और इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप सिर्फ या लो कार्ब या कीटोजेनिक डाइट या इसके बहुत अप्रोचेज है। वीगन्स भी जाते हैं, वो प्रोसेस फूड्स और रिफाइंड ऑयल कट करते हैं, उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इसके बहुत सारे अप्रोचेज है। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसके ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो आपका रिस्क फ्रॉम इन्फेक्शन काफ़ी सिवियरली घट जाएगा। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके हाथ में भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। डजेंट मैटर दूसरा कोई क्या कर रहा है, पर एटलीस्ट अगर आपने आपकी चीज़ सॉर्ट कर दी तो फिर दूसरे के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा यही मानना है कि इतने छोटे मोर्टालिटी रेट के वायरस पे हम दुनिया बंद नहीं कर सकते। लॉकडाउन्स आर इमोरल, और ये लोग लॉकडाउन जो है वो बहुत जाने ले रहे हैं, बहुत लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ का एपिडेमिक चल रहा है अभी, सुसाइड्स का एपिडेमिक चल रहा है अभी, ड्रग ओवरडोज का एपिडेमिक चल रहा है अभी। सो अगर आप यूटिलिटेरियन मतलब कॉस्ट बेनिफिट के बेसिस पे भी देखोगे तो ये एडअप नहीं करता। क्योंकि लॉकडाउन जो है उसका जो पर्पस था, पहले स्टार्टिंग में हमें क्या बोला था, 2 वीक चाहिए हमें कर्व को फ्लैटन करने के लिए, और बस फिर उतना ही मतलब है क्योंकि हॉस्पिटल कैपेसिटीज ओवरवेल्म नहीं होनी चाहिए। अभी डेटा निकल के क्या आ रहा है, यूके में एनएचएस नाइटिंगेल है, ठीक है, इन लोग ने पूरा फैसिलिटी सेटअप किया था इन लोगों की केयर करने के लिए, अभी ये बंद हो गया है। ठीक है, ऐसे यूएस में भी इन लोग ने बेसिकली फैसिलिटी सेटअप किया था, सब बंद हो गए क्योंकि जो फियर मॉन्गरिंग था स्टार्ट में, जो ये फ्रॉडुलेंट मॉडल्स के जरिए हमें बताया गया था, जैसे इंपीरियल कॉलेज है लंदन में, उसके नील फर्गसन है, आईएचएमई करके एक संस्था है, उसने मॉडल्स निकाले थे स्टार्टिंग में। सो ये सब सिवियरली बिल गेट्स से फंडेड है, और बिल गेट्स पे हम बाद में भी चर्चा करेंगे। पर बिल गेट्स ने बेसिकली अपना जो सॉफ्टवेयर और माइक्रोसॉफ्ट का जो एम्पायर का पैसा था उसके जरिए अपने फाउंडेशन के जरिए पूरे ग्लोबल हेल्थ सिस्टम को कैप्चर कर लिया। और अगर आप बिल गेट्स का बैकग्राउंड स्टडी करोगे तो उसकी फैमिली में काफ़ी यूजेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट था। यूजेनिक्स एक ऐसी आइडियोलॉजी थी 20th सेंचुरी में जहाँ पे ये एलीट लोग जो है ये मानते थे कि जो इन्फीरियर लोग हैं सोसाइटी में, जो अलग कलर के हैं, जिनको डिसेबिलिटीज़ है, जो अल्कोहलिक्स है, ऐसे मतलब सोशल क्राइटेरिया पे इनको बेसिकली क्या करना था कि इनको अपनी रेस इंजीनियर करनी थी कि जो भी ये फीबल माइंडेड है या जो भी इन्हें अच्छा नहीं लगता बेसिकली इनको स्टेरिलाइज कर दिया जाए। ठीक है, सुपीरियर रेस बनाने के लिए सोसाइटी में, क्योंकि ये लोग बेसिकली धरती पे बोझ है, इनकी ऐसी आइडियोलॉजी थी। और ये गेट्स और रॉकफेलर जैसे लोग ये पूरी आइडियोलॉजी को, एटलीस्ट गेट्स के जो फादर है जिनकी अभी डेथ हो गई रिसेंटली, वो प्लान्ड पेरेंटहुड नाम की संस्था में बैठते थे जिनकी रूट्स ये यूजेनिक्स मूवमेंट में है। फिर रॉकफेलर्स है जिनके साथ गेट्स फाउंडेशन ने बहुत काम किया। ये लोग मतलब गेट्स फाउंडेशन ने बेसिकली रॉकफेलर फाउंडेशन का जो कार्य था उसको आगे जाके उसकी मतलब प्रोग्रेस की है बेसिकली, क्योंकि रॉकफेलर फाउंडेशन कुछ एरियाज में स्पेशलाइज करता है, गेट्स फाउंडेशन में ये लोग काफी साथ में काम करते हैं। तो रॉकफेलर फाउंडेशन भी ये जो पैंडेमिक है, प्लैंडेमिक मैं इसको बोलता हूँ क्योंकि इसकी प्लानिंग बहुत पहले से की गई थी। तो रॉकफेलर फाउंडेशन भी यूजेनिक्स में इन्वॉल्व था। रॉकफेलर फाउंडेशन ने बेसिकली हिटलर के रेस प्योरिटी एक्सपर्ट को फंड किया था, और उनके जरिए बेसिकली नादी जर्मनी में 4 लाख लोगों की स्टेरिलाइजेशन की थी। और उसके ही मतलब
जो एडवांस्ड आउटकम था कि अगर ये आप सोचते हो कि इनको स्टेरलाइज कर सकते हैं, फिर इन्हें मारना गलत क्यों नहीं है? लॉजिकल एंड, राइट? इफ यू आर थिंकिंग के किसी के बच्चे करने की क्षमता आप हटा दो, तो फिर उससे मारना भी क्यों गलत है? आप सोचते हो वैसे कि वो धरती पे बोझ है, तो हटा दो ना उनको भी। तो वो लॉजिकल कंक्लूजन उसका था हॉलोकॉस्ट बेसिकली। और ये इन लोग ने आइडियोलॉजी फंड की थी पूरी, जो इंटरनेशनल बैंकिंग कार्टेल है, इन्होंने ही नाजी जर्मनी के पूरे यूजेनिक्स और दूसरे एरियाज को भी फंड किया था। तो मैं वो डाइग्रेस नहीं करना चाहता वो साइड पे, पर मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि रॉकफेलर फाउंडेशन और गेट्स फाउंडेशन बेसिकली अभी पूरे पैंडेमिक का जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी टेस्टिंग का क्राइटेरिया है, जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूँ, रॉकफेलर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट राजीव शाह ने यहाँ पे नियरली 2 महीने पहले आके कहा था टेलीविजन पे, आई थिंक एनडीटीवी पे, प्रणॉय रॉय के साथ, कि हमें बेसिकली टेस्टिंग पूरी तरीके से रैंप अप करना है, और ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो सर्वेलेंस का हम उस पर बात करेंगे, पर उसके लिए प्रपोनेंट वो बन रहे थे, और ये कह रहे थे कि हमें ये जो आशा वर्कर्स है, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं विलेजेस में, उनका उन्होंने इतने सालों से फंडिंग किया है, और उनको उनके नेटवर्क को इतना इन लोग ने बेसिकली टेक्नोलॉजी दिया आशा वर्कर्स को। ये सेम फाउंडेशन ने, गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन ने आशा वर्कर्स पे काफी काम किया, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इनका एजेंडा इनको इम्प्लीमेंट करना है, अगर इनको लोगों पे सर्वेलेंस रखनी है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करनी है, वैक्सीन डालने हैं, ये सब पहले से जानते थे। तो उनकी जो फंडिंग है वो होती रही है, और अभी इन आशा वर्कर्स को यूज किया जा रहा है विलेजेस में, इंटीरियर एरियाज में जाके बेसिकली जो बच्चों की डिलीवरी हो रही है हॉस्पिटल्स के बाहर, उनको हॉस्पिटल्स में लाना, क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन स्टेटस आ जाए वैसे, और उनको डिजिटल आईडी मिले, जो ये लोग प्लान कर रहे हैं। तो ये रॉकफेलर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट बोल रहे थे 3 महीने पहले, और अभी देख लो क्या हो रहा है। यहाँ पे टेस्टिंग इतनी रैंप अप कर दी गई है कि अभी ये लोग सेकेंड लॉकडाउन की बात कर रहे हैं टेस्ट केसेस के बेसिस पे। पर ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने आके आरटीपीसीआर की वैलिडिटी को क्वेश्चन किया है। मैं इस केस पे मतलब लिटरली 5 महीने से हूँ, और मुझे पहले ही मतलब कुछ प्रोमिनेंट एक्सपर्ट्स के वीडियोस देखने को मिले जिन्होंने पीसीआर पे पहले गाइडलाइंस फॉर्म करने का इनिशिएटिव लिया था। तो पीसीआर टेस्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। सिर्फ ये जो उसका साइकिल नंबर होता है, ठीक है, पीसीआर टेस्ट क्या करता है, आपके थ्रोट में जो सैंपल ये लोग लेते हैं उसको बेसिकली साइकिल से एम्पलीफाई करते हैं, मतलब डबलिंग रेट होता है उसका। तो सोचो आपका एक डीएनए का स्टैंड हो गया, जो ये लोग आरएनए में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस मल्टीप्लिकेशन में साइकिल्स होते हैं, मतलब 40 बार किया तो वो 40 साइकिल के थ्रू जाएगा। तो मैं आपको लैब्स के स्टेटमेंट दे दूं, अभी तो लैब्स के स्टेटमेंट भी आ गए हैं कि ये लोग बोल रहे हैं कि अगर 40 साइकिल के बदले हमने 30 साइकिल यूज की होती या 32 साइकिल यूज की होती, तो 70% केसेस जो उनके पास है वो नहीं होते, अभी जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव होते। तो सिंपली बाय एम्पलीफाइंग आप कितनी साइकिल्स रन कर रहे हो, क्योंकि वो पीसीआर यस नो आंसर की टेस्ट नहीं है, वो एम्पलीफिकेशन साइकिल है, और उसके बेसिस पे कितना जेनेटिक मटेरियल जनरेट होता है उसके बेसिस पे ये लोग आपको पॉजिटिव या नेगेटिव बोलते हैं। तो सिर्फ साइकिल नंबर कंट्रोल करने से ये लोग बहुत सारा नंबर्स का रिगिंग कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे ये लोग जानते हैं कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि टेस्टिंग में कितने प्रॉब्लम्स है। तो ये लोग अभी सब लोगों का इनकरेज कर रहे हैं कि आप सिम्टम्स नहीं है तो भी जाके टेस्ट कराओ। इसको लीगल कर दिया गया है कि अगर आपको सिर्फ टेस्ट कराना है तो प्राइवेट लैब में आप जाके करा सकते हो। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको केसेस बढ़ाने हैं, और क्योंकि लोगों में इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है। चलो आप मानते भी हो कि केसेस बढ़ गए, ओके, बट केसेस बढ़ गए और आपके डेथ्स नहीं बढ़ रहे, तो इनफैक्ट मतलब वायरस और कम डेडली हो रहा है, राइट? इसलिए तो हमें अभी देखने को मिल रहा है कि जो भी मोर्टालिटी रेट है, या आईएफआर बोलते हैं इसको, इन्फेक्शन टू फर्टालिटी रेट, ये इतना कम क्यों होते जा रहा है? क्योंकि इतनी टेस्टिंग कर रहे हैं तो वायरस कम कम डेडली होते जा रहा है, तो डरने की जरूरत कम हो रही है। पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं असम्पशन से कि वायरस डेडली है, और फिर बोल रहे हैं कि इतने लोगों को हो गया, व्हेन द एक्चुअल फैक्ट इज कि मोस्ट लोगों को होता है वो एसिम्प्टोमेटिक है, राइट? मैं आपको छोटा एग्जांपल दे दूं। मेरे दोस्त को अभी शिफ्ट पे जाना था, उसने टेस्ट कराया, ठीक है, टेस्ट करा के पीसीआर पॉजिटिव आया। वो लिटरली बंदा दो दो वीक घर पे बैठा है, कुछ नहीं हुआ उसको, लिटरली नथिंग हैपेंड, नॉट वन कॉफ, नॉट वन स्निफल, नथिंग। ओके, तो ये इसके बेसिस पे ये लोग कह रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं और अभी हमें लॉकडाउन करने की जरूरत है। पर उसका मतलब क्या है? अगर आप मानते भी हो कि केसेस बढ़ गए तो इट्स आपको खुश होना चाहिए कि केसेस बढ़ गए, तो वायरस की डेडलीनेस और कम हो रही है। और ये हमें एंटीबॉडी स्टडीज के जरिए भी देखने को मिल रहा है कि इन लोग ने एंटीबॉडी सीरो सर्वे किया है, और मोस्ट लोगों को तो वायरस हो चुका है ऑलरेडी, होके जा भी चुका है, उनको पता भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब रीजन है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। और ये डेथ्स भी काफी मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, क्योंकि डेथ्स में जो प्रॉब्लम है, आईसीएमआर है हमारी कंट्री में, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है, उसने गाइडलाइंस निकाले थे 4 महीने पहले
कि अगर कोई कोविड के साथ मरता है तो उसको डेथ सर्टिफिकेट क्यों डाल दो कि कोविड से मरा है। उसमें बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। डाइंग विथ कोविड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डाइंग ऑफ कोविड। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ठीक है। अगर कोई कैंसर से मर रहा है, कोई कैंसर से जूझ रहा है, मतलब सालों से जूझ रहा है, ठीक है, और उसके मरने के पहले आपने उस पर पीसीआर करा दी, ठीक है, और टेस्ट में इतने प्रॉब्लम्स है, लेट्स से फॉल्स पॉजिटिव आ गया उसको, कि उसका डेथ सर्टिफिकेट पे कोविड डेथ जाएगा। ऐसे बहुत लोगों को हुआ है, मैं एक दो केसेस की बात नहीं कर रहा, बट tons and tons of, like, on ground data from family members, from people who have been at the front end of this, जिन्होंने कहा है कि भाई मेरे पापा तो सालों से, मतलब ऑटोइम्यून डिजीज था उनको, कुछ के कैंसर था या हार्ट का इश्यूज था, पर उनको कोविड में डाल दिया। तो डाइंग विथ कोविड, इसलिए मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, अगर आप उसके साथ मर रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आप उससे मरे हो, क्योंकि अगर आपको वायरस से मरना है तो उसकी बहुत सारी क्वांटिटीज होनी चाहिए आप में, और ये पीसीआर टेस्ट को, जो वायरस की क्वांटिटी है उसको मेजर करने में ऑलमोस्ट वर्थलेस है। ये हमारे इंडिया के टॉप साइंटिस्ट ने भी एडमिट किया था, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर सकता हूँ, कि पीसीआर फॉर वायरल लोड इज यूजलेस। उसका वायरल लोड में मतलब बनता नहीं है, ये सिर्फ डिटेक्ट करता है एट बेस्ट। मैंने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दिया, तो ये सिर्फ डिटेक्ट करता है कि आप में वायरस है कि नहीं है। अभी वो एक स्टैंड हो सकता है या वो बहुत हो सकते हैं, उसको पीसीआर इज नॉट रियली इफेक्टिव इन डूइंग दैट, और उस पर भी बहुत क्वेश्चंस है कि ये वायरस डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये बेसिकली केसेस के मैनिपुलेशन से और डेथ सर्टिफिकेट्स के मैनिपुलेशन से इन्होंने फेक पैंडेमिक बना दिया है, क्योंकि ये डेटा ही, मतलब अगर हम एनालाइज करने बैठेंगे तो डेटा ही सॉलिड नहीं है। अगर जो मोस्ट डेथ केसेस हमें दिखाए जा रहे हैं वो एक्चुअली कोविड से मरे नहीं है, जैसे हमने एविडेंस देखा है इटली में, इन लोग ने इतना हाइप कर दिया सिचुएशन को, और फिर इटली के हेल्थ मिनिस्टर ने क्या बोला आके कि वी वर जेनरस विद द डेथ क्लासिफिकेशन, हम लोग बहुत ही जेनरस थे, और हमने डेथ सर्टिफिकेट्स पे और फिर उन लोग ने जब एनालाइज किया फिर से, तो 10% वर एक्चुअली डाइड ऑफ कोविड, और उसको भी मैं क्वेश्चन करूंगा इफ वी टॉक अबाउट दैट। फिर यूएस में सीडीसी ने भी ये कह दिया कि 6% ऑफ जो भी इनके डेथ्स थे वो एक्चुअली कोविड से हुए। तो ये अथॉरिटीज ने भी अभी आके हमें एडमिट कर दिया है। तो ये मेन प्रॉब्लम है केसेस की और डेथ्स की। अगर हम सिर्फ इस पे प्रकाश डालेंगे कि टेस्टिंग इज नॉट रिलायबल, ओके, एक्सपर्ट्स भी आके हमें बोल रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आके बोल रहे कि टेस्टिंग इज नॉट रिलायबल एट ऑल, मल्टीपल टेस्ट करा रहे लोग और उनका पॉजिटिव आ रहा, नेगेटिव आ रहा सेम डे पे, ठीक है, और डेथ सर्टिफिकेट्स को भी ये लोग रिक्लासिफिकेशन कर रहे हैं। फ्लू डेथ्स अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में तो पूरी तरीके से प्लमेट हो गए ये साल, ओके। तो वी आर सीइंग एविडेंस आल्सो कि कैसे जो नॉर्मल डेथ्स हो वुड हैव हैपेंड एनीवे, इनको कोविड की कैटेगरी में डाला जा रहा है। तो ये दो चीज जो है वो मेन है, अगर इसको हम एड्रेस करके टैकल करेंगे तो पैंडेमिक कल ही खत्म हो जाएगा। ग्रेट। सुनते हुए मुझे बस यही लगा कि दीज आर सच सब्जेक्ट्स जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। हमारे पास एज द मास ऑफ अ कंट्री वी हैव मिनिस्क्यूल नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग्स, और जितना ज़्यादा हम इसके बारे में लोगों के साथ चर्चा करेंगे और उनको एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, मुझे लगता है लोगों के दिमाग से इसका डर सबसे पहले निकल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। मैं अगले सवाल पे आता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये दिस पैंडेमिक, लेट्स कॉल इट पैंडेमिक ऑल्सो, अब तो मुझे भी यही बुलाना पड़ेगा, इज इट टेकिंग अस टू अ न्यू प्रोसेस और अ न्यू, क्या बोलूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या शब्द मैं उसको दूं। क्या ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर इज समथिंग गोइंग टू कम? जी, तो इसके पहले मैं इसके बारे में बात करूं, मैं व्यूअर्स को एक एजेंडा के बारे में थोड़ी बैकग्राउंड दे दूं, जिनका नाम है यूएन एजेंडा 21 या एजेंडा 2030, ओके। तो मैं इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, मैंने इस पर पूरा वीडियो किया है कि कैसे एजेंडा 21 का असली मकसद क्या है और ये भारत पे कैसे इफेक्ट करता है। वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो वॉट एवर लैंग्वेज यू लाइक, आई वुड एनकरेज आपके व्यूअर्स जाके वो देखें, क्योंकि वो एजेंडा बेसिकली, आप जो ये फेज की बात कर रहे हो, नया फेज आने वाला है हमारे लाइफ में, या आर इज दिस बीइंग यूज्ड टू टेक अस टू अ न्यू फेज, ठीक है। तो ये पैंडेमिक जो है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने डेविड आइक नाम के रिसर्चर है, उनका नाम सुना होगा, उन्होंने अभी लिटरली नई बुक निकाली है, द आंसर करके, मेरे पास वो किताब है भी, हाँ ठीक है, हाँ यार, ये है इनकी किताब द आंसर। इसका 85% इन्होंने पैंडेमिक के पहले लिखा था, और जब पैंडेमिक आया तो लिटरली ये उन्होंने 85% में जो लिखा था कि इनका एजेंडा क्या है और ये लोग क्या करना चाहते हैं,
वो पैंडेमिक ने लिटरली चेक बॉक्स दे दिया सब पे, सर्वेलेंस स्टेट पे चेक बॉक्स दे दिया, टेक्नोक्रेसी पे चेक बॉक्स दे दिया, मैंडेटरी वैक्सीन पे चेक बॉक्स दे दिया, और ये सालों से लिख रहे हैं कि ये एजेंडा है इनका इसलिए, और बहुत सारे एजेंडाज है। तो आप अगर ये बुक पढ़ोगे तो सम यू नो इफ यू अंडरस्टैंड, या इनकी प्रेजेंटेशन भी देखोगे या मेरे वर्क को फॉलो करोगे, तो हम लोग समझाते हैं कि इनका जो गोल है, एंड गोल है, वो क्या है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, लोगों को पता नहीं है कि ऐसा स्ट्रक्चर है सोसाइटी में जो बिहाइंड द सीन्स गवर्नमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहा है, मेजर कॉर्पोरेशंस को मैनिपुलेट कर रहा है, पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट कर रहा है, पुलिस को मैनिपुलेट कर रहा है। सो इनका जो सीक्रेट सोसाइटीज का पूरा नेटवर्क है और जो हिडन स्ट्रक्चर है, ये लोग बेसिकली इनिशिएट्स को उसमें एडवांस करते हैं अपने लेवल्स में, और फिर ये जो हिडन हायरार्की है उनका, ये बेसिकली पब्लिक में जाके इंस्टीट्यूशंस पे बैठते हैं, और फिर जो इनके सीक्रेट सोसाइटीज का हायरार्की का एजेंडा है वो उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है दुनिया में, जहाँ पे जो हिडन ऑर्गेनाइजेशन है, और ऐसे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन जो इतने हिडन नहीं है, जैसे कि बिल्डअप ग्रुप है, ट्राइलैटरल कमीशन है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस है, ये बेसिकली थिंक टैंक ग्रुप्स बोलते हैं इनको, जहाँ पे ये लोग हर साल पॉलिटिशियंस को लाते हैं, एकेडेमिया से लोगों को लाते हैं, जर्नलिज्म से लोगों को लाते हैं, इंटेलिजेंस से लोगों को लाते हैं, और फिर इन्हें सेम पेज पे लाया जाता है। इन्हें बेसिकली कुछ टाइप का रोजी, मैं नहीं कह रहा कि हर ये ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग इविल है, पर दे ब्रिंग देम ऑन द सेम पेज कि हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि इससे हमारी प्रॉब्लम्स कम होगी, इससे क्लाइमेट चेंज चला जाएगा अगर हम वर्ल्ड गवर्नमेंट लाएंगे, या पैंडेमिक चले जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी को पावर रहेगा कि ग्लोबल प्रॉब्लम है अगर, तो उसका ग्लोबल सोल्यूशन सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी से आ सकता है। जो स्टेट्स का अभी जो डिसेंट्रलाइज, थियरेटिकली डिसेंट्रलाइज है, वो एक्चुअली डिसेंट्रलाइज भी नहीं है, क्योंकि आप क्या देख रहे हो अभी, मोस्ट कंट्रीज क्या कर रहे हैं, WHO ने एडवाइस दे दी, उसको बेसिकली जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अपने नेशन पे। तो अभी भी डिसेंट्रलाइज नहीं है, पर जो थोड़े एक्सेप्शंस भी है अभी, जैसे स्वीडन है, बेलारूस है, ओके, तो अफ्रीका की कुछ कंट्रीज है, उन्होंने इसके अगेंस्ट स्केप्टिसिज्म दिखाई, मेनली स्वीडन ने स्केप्टिसिज्म दिखाई, क्योंकि स्वीडन ने कुछ लॉकडाउन नहीं किया, स्वीडन एंड अभी स्वीडन मोस्ट कंट्रीज के कंपैरेटिवली बहुत ही बेटर कर रहा है। तो ये जो एटलीस्ट जो आउटलायर्स है वो भी नहीं रहेंगे अगर ऐसा सिस्टम लाया जाएगा। तो इन्हें ये ग्रुपिंग्स में लाके ही समझाया जाता है कि प्रोपेगेंडा के जरिए कि हम चाहते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट आए ताकि हमारी प्रॉब्लम चली जाए, पर ये हिडन स्ट्रक्चर है जो सोसाइटी को बेसिकली कंट्रोल कर रहा है, और इनके ही जरिए इन्होंने अगर आप स्टडी करोगे इंटरनेशनल बैंकिंग कार्टेल को, इन्होंने ही UN बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, इन्होंने ही दोनों वर्ल्ड वॉर्स मैनिपुलेट करके बेसिकली, क्यों मैनिपुलेट की वर्ल्ड वॉर्स को, क्योंकि अगर आप वॉर इंजीनियर कर सकते हो तो अ वॉर इज द बेस्ट वे टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। ठीक है, अगर आपको पावर सेंट्रलाइज करनी है तो अगर वॉर होगा तो उसके एंड में आप जस्टिफाई कर सकते हो कि ठीक है हमें अभी वॉर प्रिवेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, और वो इनवेरिएबली इट इन्वॉल्व सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और इनका एंड गोल तो यही है। ये लोग दे आर डूइंग दिस इन सेंचुरीज, ये लोग रोमन एम्पायर के भी पीछे थे, ये लोग ब्रिटिश एम्पायर के भी पीछे थे, अगर आप इनकी ब्लड लाइन्स को स्टडी करोगे तो इन्होंने ही वॉर्स इंजीनियर किए क्योंकि इनको पावर सेंट्रलाइज करना है, और इनका इवेंचुअल गोल है कि इनको वर्ल्ड में एक ही पॉइंट चाहिए जो सभी एरियाज को डिक्टेट करती हो, लेजिस्लेशन और पॉलिसी एंड कंट्रोल एंड लॉ एनफोर्समेंट ऑल्सो। ठीक है, तो इन लोग नेशन स्टेट्स को मिटाना चाहते हैं, और ये लोग पूरी दुनिया में टेक्नोक्रेसी लाना चाहते हैं। अगर व्यूअर्स को टेक्नोक्रेसी वर्ड का मतलब पता नहीं है, तो टेक्नोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो 1930s में जन्म लिया था, क्योंकि वो टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। तो ये टेक्नोक्रेट्स ने वहाँ पे अपनी फाउंडेशन बना के ये लोग ये कह रहे थे कि मार्केट सिस्टम फेल हो गया है, अभी हम कैपिटलिज्म पे रिलाई नहीं कर सकते। अभी आप जो सुन रहे हो, कैपिटलिज्म हैज फेल्ड, और ये जो भी हम प्राइवेट एंटरप्राइज है उससे धरती का विनाश हो रहा है, ये सब तो इनके यही टॉकिंग पॉइंट्स है। और ये लोग 1940s में बेसिकली इन्होंने आके जन्म लिया था, और ये कह रहे थे कि बेसिकली ग्रेट डिप्रेशन के बाद इतना मेहम हुआ है कि अभी हमें टेक्नोक्रेसी लाने की जरूरत है। और ये लोग पॉलिटिशियंस को डिस्पाइस करते हैं। ओके, ये लोग, इन लोग को लगता है कि पॉलिटिशियंस वर्थलेस है, मुझे भी ये लगता है, पर उसका ऑल्टरनेटिव ये नहीं है कि हम लोग साइंटिफिक डिक्टेटरशिप लाए अपनी लाइफ में। ओके, तो उनका अप्रोच पूरी तरीके से अलग है जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, पर तो भी उनका यही मकसद था कि हम पॉलिटिशियंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट सभी चीज़ को हटा दे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर लाए सोसाइटी में जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कंजम्पशन कितना हो रहा है, और उसके ही जरिए हम बेसिकली पूरी सोसाइटी को माइक्रो मैनेज करें। तो आप जो न्यू एरा की बात कर रहे हो, जिनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने
ग्रेट रीसेट का नाम दिया है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीईओ, उनका नाम है क्लॉस श्वाब, और वो भी मतलब काफ़ी सालों से मैंने उनके बारे में पढ़ा है, वो अभी नए कैरेक्टर नहीं है। पर अभी ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमें पैंडेमिक के बेसिस पे ग्रीन, मतलब ग्रीन लेजिस्लेशन जो भी है, या ये क्लाइमेट चेंज का जो भी इनका एजेंडा है, उसको ये लोग पुश फॉरवर्ड कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि इन्हें ये क्राइसिस मिल गई है, और इस क्राइसिस के बेसिस पे ये लोग दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको कह दिया पहले कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स रिक्वायर ग्लोबल सॉल्यूशंस। सो सिंस ये प्रॉब्लम आ गई है, और ये टेक्निक को समझना बहुत ही जरूरी है, इसका नाम है प्रॉब्लम रिएक्शन सोल्यूशन, ठीक है। तो ये एलिट्स ही पहले कोवर्टली, मतलब छुप के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर ये पब्लिक से रिएक्शन सीख करते हैं, और फिर इनको जो इम्प्लीमेंट करना था वो उसके बेसिस पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो अगर आप पैंडेमिक के सिनेरियो पे अप्लाई करोगे, और कैसे ये पैंडेमिक को यूज कर रहे हैं सोसाइटी ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अगर मैं आपको फरवरी में कहता कि आपके साथ 6 महीने में ये होने वाला है, आप मुझ पे हंसते, टू बी ऑनेस्ट, ओके, बिकॉज मैं आपको कह रहा हूँ कि ये लोग कुछ लोग मिलके बेसिकली पूरी दुनिया को बंद कर देते हैं, और पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस सिस्टम आ जाता। ये लोग कैश को बेसिकली डिमोनाइज करते, कहते कि कैश से वायरस फैल सकता है। तो और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इनका कैशलेस सोसाइटी का एजेंडा जो है वो सालों से है, और ये बेसिकली कैशलेस सोसाइटी का यही इनका एंड गोल है कि सब वेल्थ जो है ये लोग अपनी बैंकिंग सिस्टम में ट्रैप कर दे, और इसके जरिए बेसिकली लोगों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छीन ले। तो ये जो पैंडेमिक की शुरुआत थी, मुझे बहुत हंसी आई जब टेड्रोस, जो क्रिमिनल है एक्चुअली, जो इथियोपिया के यू नो वो इन्वॉल्व थे बेसिकली कोलेरा आउटब्रेक्स को कवर अप करने के लिए, और वो इथियोपिया के एक बहुत लोगों ने अक्यूज किया कि एक टेररिस्ट टाइप का ग्रुप था, मार्क्सिस्ट, उसमें इन्वॉल्व थे। तो और ये मेडिकल डॉक्टर भी नहीं है एक्चुअली। तो ये स्टार्टिंग में आके कह रहे थे कि कैश यूज करना आप कम करो या बंद करो, क्योंकि उससे वायरस फैलता है। सो इनको जो एक्सक्यूजेस चाहिए थी, इनका एजेंडा जो सालों से है, जो हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं कि दे वांट दिस, दे वांट दैट, ये पैंडेमिक ने लिटरली सब पे टिक बॉक्स दी है। सर्वेलेंस स्टेट पे चेक बॉक्स आ गया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे चेक बॉक्स आ गया, फूड एजेंडा पे इनका काफी चेक बॉक्स आ गया, क्योंकि अभी ये लोग इसको ऐसे मैनिपुलेट करने वाले हैं। ये हमें बोलेंगे कि अगर आप खुद का खाना उगाते हो, या अगर आप खुद के एनिमल्स रेस कर रहे हो, तो इनसे वायरसेस एनी टाइम फैल सकते हैं, और पूरी दुनिया पे बेसिकली प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये लोग फेक फूड, सिंथेटिक फूड को अभी पुश करेंगे, जिनके पीछे फिर से बिल गेट्स इन्वॉल्व है। ये लोग हमसे अपनी फूड सॉवरेंटी छीनना चाहते हैं, और ये मतलब सालों से रिसर्चर्स कह रहे हैं कि इन्हें पूरी जो टेक्नोक्रेसी का जो लेआउट है, वो बेसिकली जो भी प्रोडक्शन हो रही है दुनिया में, उसको सेंट्रलाइज करना है, ठीक है। तो ये जो भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है जो इस सीक्रेट सोसाइटी कल्ट के साथ काम कर रहे हैं, जैसे अमेजोन है, अंबानी इसमें इन्वॉल्व है। मैं अंबानी का नाम ले लूँ तो अंबानी काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, एक थिंक टैंक था जो इन लोग के साथ इन्वॉल्व है, इनकी नेटवर्क में, उसका भाग रहे थे। वो काफ़ी ऐसी फाउंडेशंस का भाग रहे हैं जो इन ग्लोबलिस्ट के साथ मिलते हैं बेसिकली। रतन टाटा इसमें बहुत बड़े लेवल पे इन्वॉल्व है। तो इंडिया में भी काफ़ी कैरेक्टर्स है जिनको मैं मेरी चैनल पे एक्सपोज करूंगा, क्योंकि ये लोग ही है जो ये ग्लोबल टेक्नोक्रेटिक सिस्टम है वो भारत में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये भारत के पूरे बेसिकली पब्लिक हेल्थ के सिस्टम को, और अलग अलग चीज़ें, कैशलेस सोसाइटी एजेंडा, जो अभी फार्म बिल पास हुआ है, उसमें भी बेसिकली मैंने अभी तक पूरी तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, बट जितना मैंने किया है उससे यही पता चल रहा है कि बेसिकली ये जो बड़े कॉर्पोरेशन है, अंबानी और अदानी जैसे, इनका फूड मार्केट में एंटर होकर उसको मोनोपलाइज करना काफ़ी ईजी हो जाएगा इस बिल के जरिए। तो मैं प्राइवेट एंटरप्राइज में मानता हूँ। तो अगर इसका हमें सोल्यूशन चाहिए भी, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि फार्मर्स का जो एपीएमसी है वो काफ़ी उसका मोनोपोली और ये कंट्रोल करते हैं, तो उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप बिल लाओ और फिर ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को उसका होल्ड दे दो। बस गवर्नमेंट को उससे निकलना चाहिए, एंड फार्मर शुड हैव द फ्री राइट। आपको जैसे बेचना है बेचो, जिस प्राइस के बेचना है बेचो। अगर हमें किसी भी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, तो उससे अगर गवर्नमेंट बेसिकली बाहर निकल जाए, आप लेजिस्लेशन पास मत करो, जस्ट एग्जिट द मार्केट एंड लेट द फ्री मार्केट सॉर्ट इट आउट, वही बेस्ट सोल्यूशन है। तो ये सारे जो एजेंडाज है, मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि आप जो नए फेज की बात कर रहे हो, ये पैंडेमिक पूरी तरीके से उनको जस्टिफाई कर रहा है, और इनका क्लाइमेट चेंज से भी काफी कनेक्शन आता है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज का अभी मुझे उस पर जाने का, आई डोंट वांट टू गो टू डीप इनटू दैट, बट क्लाइमेट चेंज बेसिकली मैं नहीं मानता कि ह्यूमंस की वजह से हो रहा है। आई थिंक दैट इट इज दैट वाज अ माल्थूजियन आइडियोलॉजी, जो ये यूजेनिक्स की आइडियोलॉजी है, उसको इन लोग ने वेपनाइज किया और हमें ऐसी आइडियोलॉजी बेची
कि आप रिस्पॉन्सिबल हो धरती के विनाश के लिए, और अगर जब तक आप अपनी फ्रीडम नहीं दे देते और हमें आपको सेंट्रली कंट्रोल नहीं करने देते ताकि हम आपको पानी राशन कर सके, हम आपको अपना खाना राशन कर सके, हम आपको दिखा सके आपको कहाँ पे रहना है, कहाँ पे नहीं रहना है, क्या सस्टेनेबल है आपको, मतलब हम जंगलों में जाने से रोक दे क्योंकि उससे बायोडाइवर्सिटी थ्रेटन हो रही है, ये सब इनके एजेंडाज है जो ये क्लाइमेट चेंज और पैंडेमिक से जस्टिफाई करने वाले बेसिकली। तो इन सब पे बेसिकली टिक बॉक्स आ गई है, और जो क्लाइमेट चेंज का अंडरलाइन जो आइडियोलॉजी है वो यही है कि ह्यूमंस आर डेंजरस। ओके, ह्यूमंस आर बेसिकली मनुष्य है जो ये टॉक्सिक CO2 है जो छोड़ते हैं एनवायरनमेंट में, और इसकी वजह से ही सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और ये वायरस का भी सेम है, मतलब आप अभी जाके देख लो, अगर आप बाहर जाओगे और किसी ने मास्क नहीं पहने है, लोग कैसे देखते हैं आपको मतलब कैसे आप कोई क्रिमिनल हो बेसिकली। ओके, सो ये इनका अंडरलाइंग आइडियोलॉजी सेम है कि ह्यूमंस आर डेंजरस, और उसी बेसिस पे ये लोग सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं एक सेंट्रलाइज डिक्टेटरशिप में, जहाँ पे आपकी कोई राइट्स नहीं हो, पूरी तरीके से आप पे 24/7 सर्वेलेंस हो, आपका जो दिमाग है, आपके जो थॉट्स पे स्वतंत्रता है, उसको भी ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो क्लाउड का नाम दिया है, मतलब गूगल एग्जीक्यूटिव्स है रे कर्जवेल जैसे, इन्होंने कहा है कि 2030 तक हमारे दिमाग जो है वो AI से जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, और ये रे कर्जवेल का बेसिकली 80 to 85% प्रिडिक्शन रेट है। ठीक है, उन्होंने अब तक जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस प्रिडिक्ट किए वो 80 to 85% सच हुए हैं। तो अगर हम इन जैसे लोगों की बात, और ये सिर्फ एक है, मतलब ये इनको फ्यूचरिस्ट बोला जाता है सिलिकॉन वैली में, जो ओपनली कह रहे हैं कि हमारा इसको इसके जरिए हम सुपर ह्यूमन बन जाएंगे, हम चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं अपने माइंड में, हम अपने मेमोरीज को स्टोर कर पाएंगे। पर इसका जो अल्टीरियर मोटिव है ये लोग आपको नहीं बताते कि आपको एक्चुअली सब ह्यूमन बना देगा, और आपकी जो सोचने की इंडिपेंडेंस है ये भी आपसे छीन ली जाएगी, बिकॉज योर माइंड विल बी पार्ट ऑफ सम क्लाउड। और अगर ऐसे चीजें जा रही है तो इट कैन कम द अदर वे अराउंड ऑल्सो, एंड समवन कैन हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड। और अभी अगर हम किसी डिजिटल चीज की बात करते हैं तो फिर माइंड हैकिंग की बात भी आ जाती है। व्हाट इफ समवन हैक्स ओवर योर माइंड एंड टेक्स इट ओवर, क्योंकि यू हैव सम चिप इन योर माइंड व्हिच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो ये सब चीज़ें बहुत ही रोजी वे में सेल की जा रही है, और इनको बेसिकली फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का के नाम पे ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। पर अगर आप रिसर्चर्स की बुक्स पढ़ोगे 20-30 साल के ऊपर, इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि कैसे ये बेसिकली जो सर्वेलेंस स्टेट है, जो वर्ल्ड स्लेवरी का सिस्टम है ये लोग लाना चाहते हैं एलिट्स, वो अभी कैसे जस्टिफाई हो रहा है पैंडेमिक के बाद। तो येस, बेसिकली वी आर मूविंग इनटू अ न्यू एरा, एंड दैट न्यू एरा इन्वॉल्व्स डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। इनको चाहिए कि जैसे मैंने बोला पॉलिटिशियंस पूरी तरीके से हट जाए, और ये बिल गेट्स जैसे लोग और टेड्रॉस जैसे लोग, फाउची जैसे लोग, जो लिटरली अभी डिक्टेट कर रहे हैं, हम टेक्नोक्रेसी में गए भी नहीं है, और मोस्ट डिसीजंस तो ये लोग ही कर रहे हैं। हमारे इलेक्टेड पॉलिटिशियन सिर्फ सुनते हैं इनको, और जो कहते हैं ये डाल देते हैं। और मैंने इस पर भी एक्सपोज किया है काफ़ी कि बिल गेट्स ने भारत के पब्लिक हेल्थ सिस्टम को कैसे पूरी तरीके से टेक ओवर किया और मैनिपुलेट किया है। ये मैंने जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू किया था, कपिल बजाज के साथ। वो बेसिकली लिटरली 10 से 15 साल से लिख रहे हैं कि कैसे बिल गेट्स और रॉकफेलर फाउंडेशन, जो भी एक ग्लोबलिस्ट है, इन्होंने इंडिया में बेसिकली पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नाम की एक संस्था को पूरी तरीके से हाईजैक किया, और फिर अपने ही लोगों को सब डिसीजन मेकिंग बॉडीज के गवर्नमेंट में इम्प्लांट किया। और ये PHFI के भारत पे सभी बिलियनर जुड़े, मैं नाम भी ले लूँ उनके, इनको एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है। ये नंदन नीलेकानी की वाइफ रोहिणी नीलेकानी है, वो बोर्ड में है उनके। नंदन नीलेकानी बिल गेट्स का लिटरली बेस्ट मेट है। ठीक है, अगर आप डीमोनेटाइजेशन की बात भी देखोगे, कपल ऑफ इनसाइडर्स ने आके बोला है कि डीमोनेटाइजेशन बेसिकली बिल गेट्स और नंदन नीलेकानी ने मोदी गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था, उसके बाद उन्होंने किया था। RBI में भी गेट्स फाउंडेशन के हेड जो थे पहले, मैं उनका नाम रिकलेक्ट नहीं कर सकता था अभी, पर गेट्स फाउंडेशन के हेड RBI में भी डेप्यूटी का इसमें इन्वॉल्व थे। फिर रतन टाटा की काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है PHFI के बोर्ड में, अंबानी का रिप्रेजेंटेशन है, R मशिलकर करके नाम के एक जो CSIR गवर्नमेंट की साइंटिफिक बॉडी के हेड अध्यक्ष रहे थे पास्ट में। तो इनको मैं ऑब्वियसली चैनल में और डिटेल में एक्सपोज करता हूँ, पर मेरा पॉइंट यही है आपको कहना कि इंडिया के बिलियनर क्लास जो है, किरण मजुमदार शॉ है, बहुत ऐसे नाम है, जो बैंगलोर क्लब है, नारायण मूर्ति है, फिर मुंबई क्लब के भी काफ़ी, मेनली टाटा और अंबानी जिसमें काफ़ी डीप लेवल पे इन्वॉल्व है। और ये लोग, मतलब टाटा का तो रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ बहुत ही क्लोज संबंध है, मतलब ये लोग लिटरली एक दूसरे के घर पे लंचेस डिनर्स का उनका ऐसा रिलेशन था। और अगर आप एक बार रॉकफेलर फाउंडेशन के क्राइम्स को समझोगे तो ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है कि वाई इज रतन टाटा सो क्लोज टू अ मैन
जिनकी अभी मौत हो गई, डेविड रॉकफेलर, जिन्होंने अपनी खुद की बुक में लिखा था कि हम लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए कंस्पायर कर रहे हैं, बेसिकली आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, क्योंकि अपनी ऑटोबायोग्राफी में, मेमोइर्स में डेविड रॉकफेलर ने लिखा था कि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड सम पीपल से इट्स अ कंस्पिरेसी बट वी ओपनली एडमिट दैट वी आर डूइंग दिस। तो ये लोग खुद के ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं कि इनको नया इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए। ट्रायलैटरल कमीशन नाम की एक संस्था है जिनको डेविड रॉकफेलर और ज़िबेग्न्यू ब्रेजिंस्की नाम के जो ग्लोबलिस्ट है उन्होंने जन्म दिया, उस पर भी टाटा के काफ़ी लोग बैठते हैं। तो ये लोग सब बेसिकली मिलके, अगर आप इनका स्ट्रक्चर समझोगे, इनका ग्लोबल एक स्ट्रक्चर है जो सेंट्रली डिक्टेट करता है कि इनको पॉलिसी क्या चाहिए, फिर इनके हर देश में एजेंट्स रहते हैं जो बेसिकली जो सेंट्रल पॉइंट से निकल के आते हैं वो अपनी कंट्री में डाल देते हैं। और ऐसे ही हम देख रहे हैं कि अभी भारत का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। हमारे हेल्थ सेक्रेटरी ने आके कह दिया कि ये लोग बेसिकली साइंटिस्ट है कंट्री में जिन्होंने पैच बनाया है, स्किन पे टैटू जैसे लगेगा, जो अपनी हेल्थ इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकता है। और बेसिकली नंदन नीलेकानी और ये किरण मजुमदार शॉ ने आके कह दिया कि हम लोग आधार को यूटिलाइज कर सकते हैं लोगों को वैक्सीन देने के लिए। कल ही न्यूज़ थी, हेल्थ मिनिस्ट्री से किसी ने आके कह दिया कि जो बिल गेट्स बोल रहा है, लिटरली बिल गेट्स स्टार्ट ऑफ द पैंडेमिक से क्या बोल रहा है कि आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स या सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेट दी जाएगी जिससे इधर आपका एंटीबॉडी टेस्ट, पीसीआर टेस्ट, वैक्सीन रिकॉर्ड स्टोर होगा उसमें, और उसके बेसिस पे आपको एंट्री दी जाएगी। ये बिल गेट्स बोल रहा है स्टार्टिंग से, ठीक है, और रिसर्चर्स तो काफी टाइम से बोल रहे हैं क्योंकि इनका एजेंडा यही है बेसिकली। और नंदन नीलेकानी और ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री का ऑफिशियल है, ये अभी ओपनली आके बोल रहे हैं कि वी आर गोइंग टू गिव यू डिजिटल सर्टिफिकेट वैक्सीन आने के बाद, और वो डिसाइड करेगी कि आप कहाँ पे जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। तो अभी ये समस्या लिटरली हमारे फेस में आ गई है। और ये जो भी डिस्कनेक्टेड पार्ट्स थे ओवर द ईयर्स, जो लोग को समझ नहीं आते थे कि इतना सब कैसे कनेक्टेड हो सकता है, वो सब अभी फुल पिक्चर में आ रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं कि यस, हम लोग नए एरा में जा रहे हैं। और इनका टाइमलाइन जो है वो काफ़ी छोटा है। इनको बेसिकली 10 to 15 ईयर्स में पूरी दुनिया का नक्शा बदलना है। और अगर आप अभी हमें लगता है कि सिचुएशन बुरी है, तो अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो 10 साल के बाद इट्स गोइंग टू बी अ लिटरल नाइटमेयर। Great. Uh, I mean, I think this kind of discussion can go on for few hours. या स्टार्टिंग में आपको बोला था इसके लिए Yes, एटलीस्ट yes, yes. 2 घंटे घुस जाएंगे, बिकॉज Yes. दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंटरकनेक्टेड और उसको बराबर से Interconnect. एड्रेस करना है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम टू डू दैट। Yes. So, coming to another very viral point, which is the mask that we are using. तो मास्क राइट नाउ इज बीइंग डिस्क्रेडिटेड एंड कहते हैं कि वायरसेस के अगेंस्ट में काम नहीं करता है, ऑक्सीजन सप्लाई में प्रॉब्लम होता है, ऑल्सो दैट इट्स अ काइंड ऑफ इंडस्ट्री दैट इज ग्रोइंग अप टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। बट ऐसे भी कुछ लोग हमें ऑनलाइन सोशल मीडिया पे दिखते हैं जो कि पेशे से डॉक्टर हैं या अच्छे पोजीशन पे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपेरिमेंटल वीडियोस बना रहे हैं और ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मास्क आर इफेक्टिव और उसमें ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है जो ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम हम बोलते हैं। सो व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल दिस? ओके, तो पहली बात, ऑक्सीजन लेवल को मैं अगर एड्रेस करूँ तो बेसिकली ओशा नाम की एक संस्था है यूएस में जो रेगुलेट करती है कि जब सर्जन्स मास्क और पीपी किट पहन पे जब सर्जरीज कर रहे हैं उनका ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, ठीक है। तो उन अगर ये लोग ऑक्सीजन लेवल क्यों रेगुलेट कर रहे हैं, अगर इनको इफ इट डिडंट मेक अ डिफरेंस और ये पीपी किट पहन के कुछ फर्क नहीं होता, तो दे वुडंट रेगुलेट इट। तो ये सालों से दिस ओशा बॉडी हैज बीन देयर, और उनका बेसिकली है कि अगर परसेंटेज जो ऑक्सीजन का है वो सर्टेन लेवल के कम हो जाए तो उसकी इश्यू होती है। तो ये लोग मेंटेन करते हैं, अपनी सर्जरीज करते हैं कि ऑक्सीजन लेवल इतना रहे ताकि इन्हें इश्यूज ना हो। तो मैं आपको सी, जब भी आप कुछ साइंटिफिक इश्यू में घुस रहे हो, यू विल ऑलवेज फाइंड पीपल ऑन बोथ साइड्स, ओके। बट साइंटिफिक एविडेंस में हमें हायरार्की दी जाती है जिसके ज़रिए हम डिसाइड कर पाए कि सबसे इम्पॉर्टेंट या ठोस सबूत कौन सा है और कौन से सबूत वीक है। तो जो बॉटम लेवल पे है वो आते हैं मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशंस, जो अभी आप कह रहे हो कि बहुत सारे जो रिसर्चर्स है वो आके हमें क्या बता रहे हैं कि आप अगर आप मास्क रखते हो यहाँ पे एंड इफ यू कॉफ, बाहर इतने ड्रॉपलेट्स जाने वाले हैं और इतने रुक जाएंगे, ठीक है। इसको मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, जहाँ पे ये लोग एंड आउटकम को स्टडी नहीं कर रहे। हम क्या कह रहे हैं कि मास्क करने से यू विल फेस दीज इश्यूज एंड एट द सेम टाइम आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो अगर आपको उसको इवेल्युएट करना है
तो आपको बेसिकली स्टडी सेटअप करनी पड़ेगी जहाँ पे एक ग्रुप मास्क पहनता है, एक ग्रुप नहीं पहनता है, और देन यू सी क्या आउटकम्स में क्या फर्क आ रहा है उनको, देन यू कैन से दैट योर मास्क इज इफेक्टिव। आप सिर्फ इंटरमीडिएट पॉइंट को देख के नहीं कह सकते कि ठीक है ये ड्रॉपलेट रुक गए तो मास्क इफेक्टिव है उसमें। क्योंकि एक एग्जाम्पल दे दूँ क्यों ये गलत है कि अंडरलाइंग अजम्पशंस होते हैं उसमें। आप अज्यूम कर रहे हो कि सिर्फ ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन फैल रही है, पर इट कैन बी एयरबॉर्न और मास्क में साइड से जा सकता है। तो उसके दूसरे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं जो बेसिकली स्टोरीज होती है, ठीक है, ये सब स्टोरीज है जो हम डेटा के बेसिस पे फॉर्म करते हैं। पर अगर आपको हाइपोथेसिस को प्रूव करना है तो यू हैव टू गो टू द पॉइंट जहाँ पे आप सभी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो और आप एंड आउटकम्स को देख रहे हो। तो जो भी एंड आउटकम्स का डेटा है हमारे पास, ठीक है, स्टडीज में बहुत रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हुए हैं सालों से, ठीक है। तो अब तक इसका जो साइंटिफिक से कंसेंसस था इतने सालों से वो यही था कि मास्क आर प्रिटी मच यूजलेस फॉर एटलीस्ट कम्युनिटी सेटिंग पे। वर्ल्ड वाइड हेल्थी लोगों को बोलना कि मास्क पहनना, इतना तो कंसेंसस था साइंटिफिक कम्युनिटी के पे इट डजंट हैव एनी इफेक्ट, बिकॉज इन लोग ने बहुत सारी स्टडीज की है जहाँ पे इन लोग ने मतलब वेल कंट्रोल स्टडीज ना, ये लोग एंड पॉइंट्स देख रहे हैं। जैसे कि ये लोग देख रहे हैं कि ठीक है ये लोग सिर्फ लोगों को रिपोर्ट करने नहीं बोलते, उससे काफी बायस आ रहा था स्टडी में। बट ये लोग देख रहे हैं कि ठीक है इनका लेबोरेटरी कंफर्म्ड इन्फ्लुएंजा है कि नहीं है। तो इसमें बायस काफी हटा दे रहा था क्योंकि आप एंड आउटकम को खुद इवैल्यूएट कर रहे हो। आपको पेशेंट को ट्रस्ट करने की या जो ट्रायल में है आपके उसको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली बायस आ सकता है, कोई दे कैन रिपोर्ट समथिंग विच इज नॉट ट्रू। तो ये सब जो भी बायस को एलिमिनेट करने के वेज है और वेरिएबल्स को एलिमिनेट करने के वेज है, ठीक है। आप कितनी चीज़ें हैं जिससे आपका सर्दी जुकाम इन्फ्लुएंस हो सकता है, इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंस हो सकता है, विटामिन डी लेवल से हो सकता है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी से हो सकता है एनवायरनमेंट में, क्योंकि ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है वायरसेस कैसे ट्रांसमिट करते हैं नहीं करते हैं एयरबॉर्न पार्टिकल से, बिकॉज ऑफ विच इन सर्टन टाइम्स ऑफ द ईयर इतना फ्लू हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो टाइम पे ह्यूमिडिटी का इम्पैक्ट वो एयरबॉर्न पार्टिकल्स पे ऐसा होता है कि वो एयरबॉर्न पार्टिकल्स बेसिकली सिंक कर जाते हैं और वो ट्रांसमिट नहीं कर पाते बराबर से। तो इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है साइंटिफिक, और इनको अगर रूल आउट करना है और अगर आपको ये शो करना है कि मास्क ही है जो आपका ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आप ट्रायल डिजाइन करो और फिर आप शो करो कि मास्क ही वेरिएबल है जो कर रहा है, आपने सब वेरिएबल्स के लिए कंट्रोल कर दिया। और ये बहुत स्टडीज हुए हैं, मैं नहीं कह रहा कि कोविड के लिए हुआ है क्योंकि अभी इट्स बैरली बिन अराउंड फॉर अ व्हाइल, बट ये सब वायरल रेस्पिरेटरी इलनेसेस के कैटेगरी में आते हैं और ये सब सेम वे में स्प्रेड होते हैं। जस्ट बिकॉज वी हैव अ न्यू वायरस डजंट मीन कि हम जो भी 20-30 साल का साइंस है वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस पे उसको हटा दे, क्योंकि ये भी एक वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस ही है। और ये लोग अभी वही कर रहे हैं, नया वायरस है तो ऑल प्रायर जो भी हम जानते हैं आउट ऑफ द विंडो, स्टार्ट फ्रेश, ऐसे नहीं, लाइक इट जस्ट डजंट लॉजिकली वर्क लाइक दैट। सो मैं आपको यही कहूंगा कि जो भी ये लोग एविडेंस साइट कर रहे हैं मास पे, ठीक है, मैंने एक तो आपको कह दिया मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन, फिर ये लोग क्या कर रहे हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज कर रहे हैं जहाँ पे ये लोग देख रहे हैं कि हमने ये कंट्री में मास्क लगाया और कर्व फ्लैटन हो गया, ठीक है। इट कैन बी मैनी थिंग्स, ओके, इट कैन बी दैट ये लोग ने टेस्टिंग क्राइटेरिया चेंज कर दिया वही टाइम पे दिखाने के लिए कि मास्क है जो ये इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर आप टेस्टिंग क्राइटेरिया को चेंज कर दोगे या साइकिल नंबर पीसीआर के साइकिल नंबर को, जैसे मैंने आपको समझाया, अगर ये लोग उसको कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके केसेस ड्रॉप हो जाएंगे। तो जब भी आपको ये स्ट्रक्चर की समझ है, और मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में लोग इन्वॉल्व है वो सब इसका पार्ट है, पर स्ट्रक्चर क्या होता है, इम्पोजिशन एक्विएसेंस, इम्पोजिशन एक्विएसेंस, ठीक है। इन लोग ने ऑर्डर दिया, इन लोग ने फॉलो किया, इन लोग ने पास ऑन कर दिया, ओके। और डॉक्टर्स को स्पीक आउट करने के अगेंस्ट भी काफ़ी चीज़ें इन लोग ने लगाई है जो डॉक्टर समझ रहे हैं। इन पे मैं यूके का एग्जांपल दे दूँ तो एनएचएस ने आके गैग ऑर्डर्स लगाया है कि जो भी एनएचएस में काम कर रहे हैं वो आके कोरोना वायरस के बारे में बात नहीं कर सकते। फिर डॉक्टर्स को मोस्टली करियर्स की पड़ी है, तो ऑब्वियसली इफ दे आर गोइंग टू कम एंड स्पीक आउट, जैसे हमने देखा है इनके लाइसेंसेस पे इफेक्ट पड़ता है, करियर्स पे इफेक्ट करता है। पर स्टिल थोड़े वी हैव मेनी ब्रेव डॉक्टर्स हु हैव कम एंड स्पोकन आउट। मैं आपको मास्क की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दो इस सब के अलावा। हमने एक कैंपेन चलाया था मास्क जलाओ आज़ादी पाओ, ठीक है। मैंने पता नहीं आपने वीडियो देखा कि नहीं, पर उसके हमारे ग्रुप के ही मुंबई के 3-4 लोग थे जो काफ़ी वायरल हो गए, ठीक है। उनका वीडियो बेसिकली आई थिंक 10-20 मिलियन व्यूज़ पे पहुंच गया था। परेश रावल ने उसको ट्वीट किया था, एबीपी न्यूज़ पे इनका आ गया था, तो काफ़ी ब्लो अप हो गया था वो। हम लोग साथ में एक्चुअली रिकॉर्ड करने वाले थे, पर उन लोग ने बेसिकली 2 दिन पहले कर दिया और इनका ब्लो अप हो गया। तो उसका काफ़ी पुशबैक आया और फिर हमने एक वीडियो बनाया बेसिकली एक्सप्लेनिंग अ पोजीशन। साइंस में जा रहे थे, बेसिकली हम लोग गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स को कोट कर रहे थे
ठीक है, अगर आप अभी अभी ओपन योर मैं व्यूअर्स को कहूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की वेबसाइट पे जाओ अभी, उसका FAQ देखो, बॉटम ऑफ द पेज में लाइव FAQ है अभी, और ये लोग अभी तक कहते हैं कि हर लोग एवरीवन डजंट नीड टू वेयर अ मास्क एंड डोंट वेस्ट योर मास्क बिकॉज इट्स नीडेड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशन। अभी तक ये लोग बोल रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो सब लोग मानते हैं कि ओके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज टेलिंग एवरीवन टू वेयर मास्क, इन लोग के खुद के डॉक्यूमेंट आप जाके पढ़ोगे, ये लोग बोल रहे हैं कि जो मैं हाई क्वालिटी साइंटिफिक एविडेंस की बात कर रहा हूँ, ये लोग खुद एडमिट करते हैं ये लैकिंग है, पर ये लोग फिर ट्विस्ट करके बोलते हैं कि ओके देयर इज न्यू इमर्जिंग एविडेंस। आप ये न्यू इमर्जिंग एविडेंस देखने जाओगे तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन स्टडीज ही देख रहे हैं ये लोग। तो जब भी आपको कुछ लेजिस्लेशन पास करना होता है या लॉ पास करना होता है, उसके लिए आपको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके वेरिएबल्स कंट्रोल नहीं है तो आप उसके बेसिस पे कुछ मैंडेट नहीं कर सकते। तो जब भी पॉलिसी लेवल के डिसीजन होते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स को भी पता है कि मतलब दे नीड हाई क्वालिटी साइंटिफिक एविडेंस। सिर्फ कुछ ऑब्जर्व करने से ये लोग पॉलिसी लेवल पे स्टेट लेजिस्लेशन बना नहीं सकते। पर अभी एग्जैक्टली यही हो रहा है। ये लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं आपको कि इधर मास्क खांसने से रोक जाता है, या फिर इन लोग ने एक कंट्री में मास्क लगाया और फिर कर्व फ्लैटन हो गया, और उसमें भी ये लोग इग्नोर करते हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे इनके अजम्पशंस ट्रू नहीं होते। कंट्रीज ने मास्क मैंडेट किए पर कुछ हुआ नहीं, कंट्रीज ने लॉकडाउन किए तो भी केसेस बढ़ते गए। तो जो भी कॉन्ट्रेक्टरी एविडेंस है उसको सब इग्नोर करके जस्ट चेरी पिक कर रहे हैं अपना डेटा। इसको चेरी पिकिंग बोलते हैं, जहाँ पे आपने खुद का अजम्पशन बना लिया और फिर आप सिर्फ उसी एविडेंस को देखते हो जो आपके अजम्पशन से कंफर्म करता है, और बाकी सब इग्नोर कर दो। सो दिस इज व्हाट दे डूइंग। तो ये मेरा मास पे अगर किसी को एक्चुअली जानना है, मैंने कुछ पॉइंट्स दे दिए, पर अगर इन डेप्थ आपको वीडियो देखना है, हम स्टडीज के वी रेफरेंस ऑल द स्टडीज और जो भी गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स है, और तो इस मास के वीडियो के बाद हमें एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस कांटेक्ट किया था एक इंटरव्यू करने के लिए। तो उसमें हमने उनको ये पूरा जो 13-14 मिनट का वीडियो है वो भेजा था, पर उसमें से एज यूजुअल मीडिया आउटलेट्स जो मैनिपुलेट करते हैं, आधा मिनट का लिया उन्होंने और पूरा मतलब ट्विस्ट करके उसको बता दिया। तो अगर आपको मास पे अपना हमारा पूरा रिसर्च जानना है तो आई वुड से गो वॉच दैट वीडियो। उसमें हमने सब बेसिकली इन डेप्थ समझाया। ग्रेट। यस, सो मैंने देखे हैं सारे, और वही देख के मुझे मतलब बहुत ही बुरा लगता है कि उसके बाद जो तुम्हारी तरफ से वो पूरा वीडियो आया था वो भी मैंने देखा, और मुझे मतलब बहुत और शॉकिंग उसको था भी कि यूट्यूब ने निकाल दिया जी। हाँ, यस 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 एग्जैक्टली। सो बहुत ज़्यादा सुपरविजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा इन सारे चीज़ों को दबाने की, मिटाने की कोशिश चल रही है, जी विच इज़ एविडेंट। सो कमिंग बैक, मतलब इतने रिसर्च हो रहे हैं, डेविड आइक के इतने सालों के रिसर्च हैं, हमारे इंडिया में कंपैरेटिवली कम है। तो जब हम कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर के बात करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर है ऑन दिस काइंड ऑफ रिसर्चर्स, जो ऐसे चीजों को बाहर लाने की कोशिश करते हैं सबके सामने, कहीं ना कहीं कम लगता है। सो व्हाई डू यू थिंक कि लोग इन जैसे रिसर्चर पे ट्रस्ट नहीं कर पाते? मेन एक वर्ड में आंसर दे दो तो एजुकेशन सिस्टम। ओके, बट आई एलाबोरेट। बट इन शॉर्ट, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम भी बोलना मुझे इंसल्टिंग लगता है, क्योंकि एक्चुअली बेसिकली माइंड कंट्रोल का ये सिस्टम है जहाँ पे ये लोग बेसिकली स्कूल्स में और जो भी इनके फॉर्मलाइज एजुकेशन के मीन्स होते हैं उसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि ट्रूथ ऑलवेज कम्स फ्रॉम अथॉरिटी एंड ओबीडियंस इज अ वर्च्यू। आपके जो एल्डर्स या अथॉरिटी में बोल रहे हैं उन पे विश्वास रखना वर्च्यू है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अजम्पशंस बच्चों को सिखाई जाती है कम से कम उम्र से, और ये साल पे साल रिपीट करते जाते हैं ये लोग, और उसको बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइज करके बच्चों के दिमाग में बैठाया जाता है कि जो सच है वो अथॉरिटी से या स्टेट से आता है, और हमें स्टेट पे स्टेट बेसिकली हमारे टीचर के जैसा है। तो यही होता है क्लासरूम में, लोग बच्चों को लगता है कि हाँ टीचर नहीं होगी तो पूरा केओस रहेगा क्लासरूम में। ठीक है, तो यही बच्चे बेसिकली जब बड़े होते हैं तो जो टीचर का रोल है वो स्टेट पे प्रोजेक्ट कर देते हैं कि अगर स्टेट नहीं रहेगी तो पूरी तरीके से केओस हो जाएगा। तो ये मतलब एजुकेशन सिस्टम पे मेरे बहुत व्यूज़ है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो भी होम स्कूलिंग अनस्कूलिंग पे फोकस दे रहे हैं, और अपने बच्चों को जो ट्रू नॉलेज है, आई वुडंट इवन से डिफरेंट नॉलेज, बट मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें हैं हमारे लाइफ में जो ऑब्जेक्टिवली ट्रू है, इसके बिलीफ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि राइट्स का मुद्दा है या फ्रीडम का मुद्दा है, ये हम एम्पेरिकली समझ सकते हैं अपनी खुद की डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करके।
No one needs to tell us this. It's not a belief. Okay, it's something that exists objectively in nature. So at least अगर हम बच्चों को फंडामेंटल्स सिखाए और फिर अगर उन्हें जाके कुछ स्पेशलाइज करना है चीज़ में तो ऑफकोर्स दे फ्री टू डू, बट एटलीस्ट मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि बच्चों की फॉर्मेटिव ईयर्स में जितना उन्हें स्कूल से दूर रखा जाए और जितना हम लोग जो इन बातों को समझते हैं हम उन्हें उनके ही बेसिस पे, उनके ही लर्निंग पे, उनको क्या सीखना है उसके बेसिस पे अगर हम उन्हें चीज़ें फीड करें और सब साइड्स की स्टोरी बताएं। ऐसा नहीं है कि स्कूल में क्या सिखाया जाता है, क्लाइमेट चेंज है, इस पे यही कंसेंसस है, इस पे अगर आप डिफर करते हो तो मैंने ऐसे बहुत स्टोरी सुने हैं जहाँ पे टीचर को भी पता है कि कुछ पॉइंट डिस्प्यूटेड है, ओके, और स्टूडेंट को भी पता है, बट देन स्टूडेंट हैज टू लाई ऑन द एग्जाम because if he's going to write that then he is not going to get his marks. So एजुकेशन सिस्टम बेसिकली ये लोग प्रोपेगेंडाइज कर रहे हैं कि बच्चों को क्या जानना चाहिए और उसका ही कंफर्मेशन एग्जाम से ये लोग ले रहे हैं। तो यही मेन मुद्दा है जिसके जरिए लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि लोगों को सिखाया जाता है कि अथॉरिटी पे विश्वास रखो और अथॉरिटी नोज द बेस्ट, अथॉरिटीज केयर्स फॉर यू, द स्टेट केयर्स फॉर यू। ये सब अजम्पशंस के जरिए बच्चों का काफ़ी माइंड कंट्रोल होता है और फिर यही माइंड कंट्रोल ये लोग सोसाइटी में जाके प्रोजेक्ट करते हैं। पर अभी अगर आप एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जो एविडेंस है उसको देखोगे तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत लोग हैं जो अपना माइंड चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो डेली एक्सपीरियंस है, जो एवरीडे जो हो रहा है कि हमारी सिचुएशन बदतर होती जा रही है, हमारे जॉब्स जा रहे हैं, हमारे फ्रीडम्स जा रहे हैं, हमें छोटी चीज़ें करने का भी अधिकार नहीं है। मतलब यू कांट इवन गो एंड रिलैक्स और हैव फन एट सम प्लेस, पार्टिंग करना अभी बंद है। तो ऑल आउटलेट्स फॉर रिलीजिंग दैट स्ट्रेस दैट इज बिल्डिंग अप, दे हैव शट डाउन, दे ट्राई टू शट डाउन, पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते। जिनको करना है वो तो ऑब्वियसली दे विल फाइंड वेज एंड मीन्स टू गो आउट एंड रिलैक्स, बट इन लोग ने सिस्टमेटिकली इनको बेसिकली बंद किया है। तो इस जो लोगों का डेली एक्सपीरियंस है वो भी मैचअप कर रहा है जो हम कंस्पिरेसी रिसर्चर्स बोल रहे हैं सालों से। इसलिए अभी आप देखोगे तो डेविड आइक का यूट्यूब चैनल बैन होने के बावजूद भी उसका जो इंटरेस्ट है उसके वर्क में वो काफ़ी एक्सप्लोर हुआ है। और ऑल अराउंड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जर्मनी में 2 मिलियन लोगों का प्रोटेस्ट हुआ था, ज़्यादा, सम पीपल से इट वाज मोर। यूके में अभी मेजर प्रोटेस्ट हुए थे, अभी 27 पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। इंडिया में हम लोग प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं 2 अक्टूबर को। तो मूवमेंट बढ़ रहा है पीछे से, देयर आर पीपल आर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड, बट ये स्टिल यही है कि देखो ये सोशल इंजीनियर्स जिनको बोलते हैं, जो बेसिकली थॉट कंट्रोल करते हैं हमारा परसेप्शन कंट्रोल, इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज ये लोग समझते हैं, जो इनकी एंशिएंट साइकोलॉजिस्ट है ये लोग, और ये लोग अकल्ट साइंसेस की बहुत नॉलेज रखते हैं। तो इन्हें पता है कि अगर ये पॉपुलेशन का परसेप्शन कंट्रोल करेंगे इन्फॉर्मेशन के जरिए, वो परसेप्शन इनका एक्शन डिसाइड करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मानते हो कि मास आर यूजलेस, और वो परसेप्शन कैसे चेंज होता है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, आपने जाके रिसर्च किया और यू केम टू ऑन कंक्लूजन के ये मास मेरे लिए यूजलेस है और मेरे लिए रिस्क भी पैदा कर सकता है, इट कैन हार्म माई हेल्थ ऑल्सो। सो दैट विल चेंज योर एक्शन, राइट? अगर आप उसमें मानते हो तो आप मास्क को नहीं पहनना चाहोगे और आप उसका विरोध करना चाहोगे अगर आपको फोर्सफुली पहनाया जा रहा है। तो इन लोग ने इसीलिए एजुकेशन सिस्टम को इतना मोनोपलाइज करने की कोशिश की। और मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जोड़ दूँ कि बिल गेट्स जैसे लोग एजुकेशन में भी काफ़ी इन्वॉल्व है। बिल गेट्स ने बहुत यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग दी है, कॉमन कोर एजुकेशन को फंड किया अमेरिका में। इनके जो मित्र है यहाँ पे नंदन निलेकानी, ये भी रॉकफेलर फाउंडेशन और गेट्स फाउंडेशन के साथ अभी एजुकेशन स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं, ओके, जो इंडिया में बेसिकली डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड करेगा। तो इनको इतना ये लोग फोकस देते हैं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों का जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है, ओके, वो उन लोग ने कंट्रोल कर दिया, ये लोग हमारा लिटरली एक्सपीरियंस डिक्टेट करेंगे। क्योंकि जो अगर क्वांटम फिजिक्स की मैं थोड़ी बात यहाँ पे जोड़ दूँ, बट लाइफ इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी brought into your existence or your experience by perception. Okay, so आपका जो perception रहेगा या what you think about yourself, क्या आप सोचते हो कि आप मतलब बेसिकली छोटे आदमी हो जिनकी कोई पावर नहीं है, या if you think you are powerful enough, तो आपका जो माइंड और थॉट्स का जो इम्पैक्ट है आपकी एक्सपीरियंस पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये अभी हमें एपिजेनेटिक्स के जरिए जानने को मिल रहा है। और क्वांटम फिजिसिस्ट और जो कटिंग एज पे है, ये लोग भी हमें बता रहे हैं कि आपका जो बिलीफ्स है वो आपके लाइफ में बहुत ही वैल्यू रखते हैं आपका एक्सपीरियंस डिसाइड करने के लिए। और ये मैंने भी देखा है, क्योंकि जब मैं अपने बबल में जी रहा था 5 साल के पहले, मेरा एक्सपीरियंस पूरी तरीके से अलग था। और एक बार मेरा बबल आके बर्स्ट हो गया, मैं इतने इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरेक्ट करने लगा, ओपन अप करने लगा, कि उसने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेरे लाइफ में अट्रैक्ट किया।
कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, पूरा चेंज हो गया। और ये सब पावर रखते हैं कि आप जितना अपना परसेप्शन ट्रूथ से अलाइन करोगे, उतनी ही आपकी लाइफ और राइचियस और प्योर होती जाएगी। तो मेरा बेसिक कहना यही है कि परसेप्शन कंट्रोल इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए अभी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जायंट्स पे भी इतना कंट्रोल कर रहे हैं ये लोग। न्यूज़ एजेंसीज तो पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है इनसे, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो गया है, और जो भी मैंने बिलीव किया था वो फिर से वैलिड हो गया पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मेरा, कि ये लोग बेसिकली सच को छुपाने के लिए जो भी पैसा देगा उनको, या जो भी इनका न्यूज़ एजेंसी का जो हायरार्की है, जैसे अभी हम पता है कि अंबानी पूरे न्यूज़ 18 को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो उसमें कितनी सारी चैनल्स आ जाती है अंदर, और इन्होंने पूरी तरीके से मीडिया को, एजुकेशन सिस्टम को, और अभी सोशल मीडिया को, ठीक है, सोशल मीडिया हमारा लास्ट ऑल्टरनेटिव बचा था जिसके जरिए हम लोगों को पहुंच सके और अपने व्यूज सामने रख सके, पर उन पे भी इतना अटैक हो रहा है। मेरी बात देख लो, जब मेरा मास्क का वीडियो हटा था, मेरे लिटरली आई थिंक 3,500 सब्सक्राइबर्स थे। उतने कम लेवल के सब्सक्राइबर्स के वीडियो को हटाना इट्स अ साइन ऑफ पैनिक। आई वुड थिंक इट्स अ साइन ऑफ पैनिक, बिकॉज इतने छोटे लेवल पे क्या हो रहा है, मतलब आई एम बैरली स्पीकिंग टू 3,500 पीपल, उसको अगर लोग शेयर करेंगे तो 10-20,000 पीपल मैक्स, यू नो। सो इट शोज के ये लोग फालतू का सेंसर नहीं कर रहे, इनको पता है कि इन्फॉर्मेशन का क्या इम्पैक्ट है, और अगर राइट इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचेगी तो इनके एजेंडास फेल हो सकते हैं, और इसके लिए ये लोग सेंसर कर रहे हैं। और अभी जो लोग हैं वो दो ट्रेजेक्ट्री में जा रहे हैं। एक टाइप के लोग हैं जो सिस्टम में डीपर और डीपर घुसे जा रहे हैं, और बेसिकली इनके जो टॉकिंग पॉइंट्स है या बिलीफ सिस्टम है उनको पूरी तरीके से अडॉप्ट कर, और एक साइड पे लोग हैं जो बेसिकली क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो अथॉरिटीज़ बता रहे हैं उससे लाइन अप नहीं हो रहे, और वो पूरी तरीके से बेसिकली अलग पाथ पे जा रहे हैं। तो यही हम डिवाइड देख रहे हैं, और इसलिए हम अभी इतना डिवाइड देख रहे हैं फैमिलीज में। आप देख लो ये इश्यूज पे कितना डिवीजन हो रहा है, मास्क पहन रहे हो नहीं पहन रहे हो, कितने इश्यूज है अभी, जो जो भी मतलब आपके व्यूज है कोविड पे, या उसके कितना डिवीजन हो रहा है बेसिकली। तो ये सब फिल्टर आउट करने के लिए है कि आपकी ट्राइब क्या होगी, और आपके परसेप्शन और आपके बेसिकली बिलीव्स के बेसिस पे आप अपनी ट्राइब अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये वेज बढ़ रहा है, जो सोसाइटी में डिवीजन का वेज है ना, एक साइड पे है जो लोग पूरी तरीके से सिस्टम में विश्वास रखते हैं और उनके परसेप्शंस को पैरेट करते हैं, अपने परसेप्शन मान के वो भी, और एक साइड पे जो लोग बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि everyone who's thinking alternatively is right, बट एटलीस्ट उन्होंने इतना सेल्फ रिस्पेक्ट तो है कि अपने खुद के परसेप्शन अपने थ्रू पास कर रहे हैं, ना कि मतलब अथॉरिटी में आके किसी ने कह दिया और उसको मान लिया। तो जितने लोग ये जितने इवेंट्स ये बुरे होते जाएंगे, ठीक है, मैं आपको कह दूं तो इन्होंने फ्यूचर में फूड शॉर्टेजेस प्लान किए हैं। मैं डराना नहीं चाहता लोगों को, पर मेरी रिसर्च से जो भी है मैं कह रहा हूँ कि ये लोग फ्यूचर में सेकेंड वेव लाना चाहते हैं। उससे बेसिकली जितना भी मतलब अभी कैपिटल स्ट्रक्चर है और एम्प्लॉयमेंट है उसकी धज्जियां उड़ने वाली है, जितना भी बचा था उतना, लोन्स डिफॉल्ट होने वाले हैं बहुत, बैंकिंग सिस्टम में बहुत इश्यूज आने वाले हैं, फूड क्राइसिस आने वाली है। ये लोग बेसिकली फूड के जो सप्लाई चेन है वो बेसिकली क्लॉग अप हो जाएगी, क्योंकि अगर ये लोग सेकेंड वेव लाते हैं तो फिर से बेसिकली फूड तो रहेगा, पर उसको लाने के लिए मतलब अगर लोग नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा। अगर ये लोग मीट सेंटर्स या फार्म्स पे जाके टेस्टिंग करते हैं और उसके बेसिस पे लोगों को रोकते हैं खाना उगाने से, या टू बी इन्वॉल्व इन बिजनेस, तो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा फूड सप्लाई पे। तो ये सब प्लान्ड है। और आइसेज फार्मर करके यूट्यूब पे चैनल है, उसने फूड के टॉपिक पे बहुत ही डिटेल में लिखा है, और ये लोग सब मतलब दीज आर 100-150 ईयर ओल्ड प्लांट्स कि इन लोग को पूरी तरीके से सिंथेटिक फूड सप्लाई लानी है पॉपुलेशन में, और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, और ये सब इनका बहुत लंबा एजेंडा है, जो अभी हम ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे हम इम्प्लीमेंट होते देख रहे हैं, क्योंकि इनके एजेंडा के हम टाइमलाइन पे आ गए हैं जहाँ पे इन लोग ये पुश करना चाहते हैं हम पे। तो यस, जितने आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए, जितने इवेंट्स वर्स होते जाएंगे उतने ही ज़्यादा आप लोग देखोगे जो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा और क्रिटिकली सोचना सीखेंगे। पर अभी तक लोग क्यों नहीं कर रहे इतने, क्योंकि जो मैंने फैक्टर्स आपको समझाए, परसेप्शन कंट्रोल जो इनको बचपन से सिखाया जाता है, पीयर प्रेशर, ये सब चीज़ें हैं जो इनको बेसिकली बाहर जाने से रोकती है। क्योंकि अगर ये स्टेप आउट करेंगे तो लोगों में फियर ऑफ व्हाट अदर पीपल थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग ये नहीं सोचते कि ठीक है मैं अपना ओपिनियन चेंज कर दूँ तो प्राइम मिनिस्टर क्या सोचेगा, सीएम क्या सोचेगा। लोग ये सोचते हैं मेरी माँ क्या सोचेगी, व्हाट विल माय फ्रेंड्स थिंक अबाउट मी। और वो फियर रहता है कि आप अकेले छोड़ दिए जाओगे, विल बी ऑस्ट्रेसाइज्ड। पर मैं ऐसे लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि देयर इज अ ग्रोइंग कम्युनिटी ऑफ पीपल जिनको इन बातों की समझ है, और जो आपके लिए रहेंगे इन केस
you get ostracized or isolated from people who don't understand what is going on right Great. आई विल कम डाउन टू वन लास्ट क्वेश्चन बिकॉज आई हैड मतलब मेरे लिस्ट में और भी कुछ सवाल थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो हम एक दिन फिर से बैठेंगे. जी. We can do another one. Yes, yes. So my last question is, which I think is something which we can practice, is on the subject of free thinking. So when we say कि you are a free thinker, तुम क्या कहना चाहते हो? क्योंकि साधारण तरीके से हम सब लोग ये मानते हैं कि हम तो फ्री सोच ही रहे हैं, लेकिन तुम्हारा फ्री थिंकिंग का डेफिनेशन और बाकी लोगों का फ्री थिंकिंग का डेफिनेशन थोड़ा अलग हो सकता है. वो क्या है? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल रैप अप द सेशन. जैसे मैंने आपको समझाया पहले, ठीक है, इन सोशल इंजीनियर्स और जो हिडन में जिनका कंट्रोल सिस्टम है, इन्होंने बेसिकली लोगों के लिए परसेप्चुअल बबल्स क्रिएट किए हैं. ठीक है, जो बेसिकली लोग अपने परसेप्शंस डाउनलोड करते हैं, वो कहाँ से आते हैं? आपको सोर्स कंसिडर करने की बहुत ज़रूरत है. इफ़ यू थिंक यूर अ फ्री थिंकर, जस्ट गो एंड आस्क योरसेल्फ कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, उसके सोर्सेज कहाँ से आए. मोस्ट लोग जो होते हैं वो कुछ टीवी पे देखते हैं या कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या स्कूल में कुछ सिखाया जाता है, कॉलेज में सिखाया जाता है. दे बेयरली स्टॉप टू क्वेश्चन इट. मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ मेडिकल सिस्टम में, क्योंकि मेरा न्यूट्रिशन और उससे हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी बड़ा पैशन है मेरा, और मैं उस पर प्रोफेशनली काम भी कर रहा हूँ. तो ऐसे बहुत लोग हैं जो बेसिकली मेडिकल सिस्टम से पास आउट होते हैं, और उनके बिलीव्स बेसिकली जो, और बिलीव्स कहाँ से आते हैं? ऑब्वियसली जो फंडिंग डिक्टेट करता है यूनिवर्सिटीज़ को, दे आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर लाइक करिकुलम, कि आपको क्या सिखाया जा रहा है उसमें. तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी इज बीइंग फंडेड बाय फार्मा कंपनीज एंड गेट्स, मैं नहीं कह रहा कि हर चीज़ सिखाएंगे वो गलत होगी, बट यू हैव टू बी स्केप्टिकल, राइट? आपको कोई जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है उनके प्रोडक्ट्स में, और उनके प्रॉफिट इज नॉट बैड, बट जस्ट उनको उस पर इंसेंटिवाइज और बेसिकली मोनेटाइज करना है उसको. तो ऑफ कोर्स वो आपको इन चीज़ों में इंडोक्ट्रिनेट करोगे, क्योंकि अगर आप उनका बिलीफ सिस्टम अडॉप्ट करोगे तो उनके लिए ऑब्वियसली बेनिफिट है. तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा लोगों को कंसिडर करना चाहिए. तो अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, या आप कुछ टीवी पे देख रहे हो, या आप कुछ यू रेड इट ऑन द न्यूज़ और समथिंग, सो लोगों में ज़्यादा करके ये नहीं है कि मैं उसको बैक बर्नर पे रख दूँ. मैं नहीं कह रहा रिजेक्ट कर दो ओपनली, ठीक है, बट आपने पढ़ा है, ठीक है, उसको बैक बर्नर पे रखो. मैं अभी इस पे ओपिनियंस फॉर्म नहीं करूंगा, आई विल डू माय ओन रिसर्च ऑन दिस. और आप फिर जाके उस पर रिसर्च करो ना, लुक एट बोथ साइड्स ऑफ द इश्यू. से फॉर एग्जांपल अभी वैक्सीन का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वैक्सीन मेन स्ट्रीम मेडिकल सिस्टम में इनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है पूरी तरीके से. आई नो मैनी 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 एमडीज जिससे मेरी बात हुई, और मैं ये उनके एक्सपीरियंस से भी आपको बोल सकता हूँ इंडिया में भी, कि ये लोग वैक्सीन बेसिकली मेडिकल स्कूल में इतना ही बोलते हैं कि शेड्यूल क्या है, आपको शेड्यूल कैसे देना है, ये साल पे ये देना है, इसके बेनिफिट्स क्या है, हाउ वैक्सीन आर सेव लाइव्स एंड वैक्सीन आर सेफ एंड इफेक्टिव. बेसिकली यही सिखाया जाता है. ये लोग साइड इफेक्ट्स पे थोड़ा लिप सर्विस देते हैं कि या किसी को साइड इफेक्ट होता है तो ये 1 in a million है, ठीक है, बहुत रेयर साइड इफेक्ट्स होते हैं वैक्सीन से. तो भी मैं वैक्सीन के डिबेट में घुसना नहीं चाहता, पर ठीक है, अगर आपने वो सोचा है, तो बहुत लोग जो फ्री थिंकर्स अपने आप को मानते हैं, ठीक है, मैं इनसे दे कम टू मी, क्योंकि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन पुट आउट करता हूँ, तो मुझे जो बैकलैश आता है, जो भी फीडबैक आता है, तो ये सब मतलब मेडिकल स्कूल से काफ़ी आते हैं कि हाउ कैन यू से दिस, डोंट यू बिलीव दैट पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स वर एराडिकेटेड बिकॉज ऑफ वैक्सीन्स, एंड वैक्सीन आर सेफ एंड इफेक्टिव. सेम टॉकिंग पॉइंट्स ये लोग पैरेट करते हैं, पर ये लोग सोचते हैं कि उनके खुद के विचार है. तो मैं उनसे खाली यही कहूँगा कि until you have investigated both sides of an issue, और आपने आर्ग्यूमेंट्स अपनी रिफाइन किए, ठीक है, इसको ट्रिवियम बोलते हैं लर्निंग का. ट्रिवियम प्रोसेस जो एंशियंट मिस्ट्री स्कूल्स में ये प्रोसेस था, और ये जो लिबरल आर्ट्स के एजुकेशन है, इनिशियली भी ये लोग ये मॉडल प्रपोज करते थे कि अगर आपको किस चीज़ में, मैं आपको फ्री थिंकर का बेसिकली मेरा आइडियल डेफिनेशन क्या है वो दे रहा हूँ. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही सिर्फ हूँ और आप मतलब whoever is watching वो नहीं है, पर अगर आपको रियली फ्री थिंक करना है, आप वाइड वैरायटी से पहले अपना बेस जो नॉलेज का बेस है उसको कलेक्ट करो आप, ठीक है. टेक एवरी साइड, आई एम नॉट जस्ट सेइंग लाइक मेरे तरफ बायस्ड हो आप, पर आप मेरा मटेरियल लो, आप मेन स्ट्रीम का मटेरियल लो, आप यूनिवर्सिटी से निकलता है उसका मटेरियल लो, review it, okay, review both sides, okay, then use your own logical or deductive thinking, and use your heart as well, because intuition is very important, so use both of them in conjunction.
अपना राइट ब्रेन यूज करो और लेफ्ट ब्रेन भी यूज करो, क्योंकि ये सोसाइटी में क्या है कि राइट ब्रेन पूरी तरीके से डिमोनाइज किया जा रहा है. जो होलिस्टिक इंटेलिजेंस है, जो कैन सी कनेक्शंस बिटवीन पार्ट्स, and which is more sort of receptive to things being connective and can see the larger picture behind things. वो pixels नहीं देखता, वो picture देखता है. मैं ये नहीं कह रहा आपका लॉजिक इन्वॉल्व इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. मैं ऐसे बहुत लोगों को देखता हूँ जो पूरी तरीके से राइट ब्रेन में घुसे हैं और इनको बस साइंस सब बकवास है और ये सब कंट्रोल है, वैसे सोचते हैं. तो ईदर वे बोथ काइंड ऑफ थिंकिंग आर नॉट वैल्यूएबल. आपको लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को इंटीग्रेट करना ज़रूरी है, एंड देन पास इट थ्रू योर माइंड, थ्रू योर हार्ट, then come to a conclusion about what you believe, not what someone in authority or someone on the television, some journalist, supposed journalist reading from a teleprompter, or some teacher in your school who has probably downloaded the same thing from her course and just dumped it on you. Just don't accept things because someone is telling you that. I would say that is the real definition of a free thinker. Free thinker ऐसा होता है जो सभी sources के लिए ओपन माइंड रखता है. और मैं नहीं कह रहा कि दिमाग इतना खुला रखो कि वो बाहर गिर जाए, ऐसा भी करना जरूरी नहीं है. इट्स आपको मैं एक इमेज या मीम भेजूंगा तो आपके लिए मतलब महत्वपूर्ण रहेगा, पर एक स्केल रहता है, ठीक है. एक राइट साइड पे रिजिड स्केप्टिसिज्म आता है, मतलब आपने ऑलरेडी अपना माइंड बिलीव कर दिया और जो भी आपसे कोई कॉन्ट्रैक्टरी डेटा दे रहा है या कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्टरी इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है वो आप ऑटोमेटिकली डिसमिस कर दोगे. और एक साइड पे पूरा गलेबिलिटी रहता है, मतलब जो बोल दो वो मान लेगा. तो ये बोथ स्टेट्स आर नॉट वैल्यूएबल टू लर्निंग. आपको अगर सच में सीखना है तो आपको बैलेंस होना चाहिए स्केप्टिसिज्म का और ओपन माइंडेडनेस का. और अगर आप जब बोथ मिलाते हो, यू टेक इन्फॉर्मेशन एंड यू कंसिडर कि क्या इसमें ट्रूथ है, इज देयर वैलिडिटी टू दिस, और सब इवैल्यूएट करके अपना ओपिनियंस बनाओ. एंड आई अंडरस्टैंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ये इजीली नहीं होता, ओके. बट अगर लोगों को एक्चुअली अपने परसेप्शंस के कंट्रोल में रहना है तो स्टार्ट आउट विद अ ब्लैंक स्लेट, ओके. रिमूव वॉट एवर यू थिंक यू टॉट टू बी ट्रू, बिकॉज अभी दुनिया में मैं आपको इतने एग्जाम्पल दे दूं जहाँ पे वी बीन सिवियरली मिसलेड मेन स्ट्रीम से. many subjects, okay, not just COVID or whatever, but when it comes to पैसा कैसे बनता है, which is very important for how we are controlled, non-human life, just materialism, atheism के बाहर क्या एविडेंस है जो हमें दिखाता है कि कॉन्शियसनेस का ह्यूमन रियलिटी पे इम्पैक्ट है, जो नॉन फिजिकल साइड ऑफ थिंग्स है, मेटाफिजिक्स जिसको बोलते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है. बहुत सारी एरियाज है जिसमें हमें मिसलीड किया गया है. तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमें अभी ये पॉइंट पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम आरटी का ये जो स्लोगन है, आरटी रशिया टुडे, उसका स्लोगन है क्वेश्चन मोर, ठीक है. तो इसका क्वेश्चन मोर इज नॉट इनफ इन टुडेज टाइम. वी नीड टू क्वेश्चन एवरीथिंग, बिकॉज दैट इज द ओनली वे कि हम सच में अपने परसेप्शंस पे कंट्रोल ले पाएंगे और जो हमें मैनिपुलेट करना चाहते हैं हम उनके चंगुल से बाहर निकल पाएंगे. और ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे कुछ चीज़ों के बारे में अग्री करते हो और कुछ चीज़ों के बारे में डिसअग्री करते हो, पर एटलीस्ट आप वो प्रोसेस से गए हो. अगर यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, ठीक है, आपको यू नीड टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एटलीस्ट, इफ नॉट टू एनीवन एल्स, कि आपने सच में वो किया है और फिर आप अपने कंक्लूजन्स पे आए हो. वो होता है असली फ्री थिंकर. ग्रेट. मैं बस इतना बता सकता हूँ कि आज मेरे लिए एक बहुत अच्छा लर्निंग सेशन था तुम्हारे साथ. एंड I can promise to our followers or listeners who are listening today and will listen to this session later that we have to sit again. We have to find out many more subjects on which we can discuss. ये एक बार करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो दूसरे तरफ वाले प्लान करके आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यू, दे आर प्लानिंग दिस फॉर 150 years or maybe more than that. So मुझे नहीं लगता हम एक दो बार बैठेंगे तो ये कुछ हम कर पाएंगे. We need to get together and we need to come again and again to make others aware of what is happening and what is actually free thinking is all about. Johan, great session with you today. You have been talking for last 1.5 years. Thank you so much for that. I mean, मैं सोच सकता हूँ कि what kind of research you have been doing for last 3, 4, 5 years. I mean, it's great that you are doing this at this age and you are awareing people with such great information and subjects and knowledge. This is extremely important. Thank you so much for what all you are doing. And a request to all our listeners who are listening today and will listen to this session later is that
हम लोग जब हमारे लाइफ से गुजरते हैं तो काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन नॉलेज हम इनपुट करते हैं, और आज जिस विषय में मुझे लग रहा है कि हमें सोचना चाहिए, हमें हर एक चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, हर एक चीज़ पे सवाल उठाना चाहिए। हमारे सामने जो भी रखा जा रहा है उसको रेडिली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई लर्न टुडे, एंड आई होप ऑल आवर लिसनर्स हैव गॉन थ्रू। बहुत सारे इंफॉर्मेशन आया है आज के इस चर्चे से, बहुत सारे ऐसे नाम आए हैं, ऐसे रिसर्च के नाम आए हैं, लोगों के नाम आए हैं। आई थिंक माई सेल्फ, मैं खुद इस वीडियो को या इस ऑडियो को मैं 2-3 बार और सुनूंगा। आई विल डू माई ओन रिसर्च एंड आई विल गेट बैक टू यू सो दैट वी कैन टॉक मोर ऑन दिस सब्जेक्ट। अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन। और मैं दर्शकों को सिर्फ यही कहूँगा कि आपको अगर इन विषयों के बारे में और जानना है तो मेरी वेबसाइट है, जहाँ पे मैंने रिसोर्सेज के सेक्शन में कुछ बुक्स रेकमेंड किए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस देखते हैं और अगर आपको लगता है कि आपको किसी एरिया में अपनी नॉलेज और डीपन करने की ज़रूरत है, या आपको कुछ और जानना है जिसके ऊपर मैं अभी तक वीडियो नहीं बना पाया पर मैं बनाने वाला हूँ ऑब्वियसली, तो आप उन बुक्स को जाके रेफ़र कर सकते हो। और कोविड के रिलेटिंग मैं इतना बता दूं कि हमने एक फ्लायर डिज़ाइन किया है इंग्लिश और हिंदी में, जहाँ पे हमने बेसिक कुछ फैक्ट्स है कोविड के बारे में उसको दिए हैं। और फिर मेरी वेबसाइट पे एक सेक्शन है कोविड का, जहाँ पे हमने उसको बैकअप करने के लिए जो भी रिसर्च पेपर्स है या जो भी मतलब ओपिनियन पीसेज है, आर्टिकल्स है, वीडियोस है, उसको सबको मतलब एक जगह पे डाला है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली है। इट्स नॉट ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन, वी जस्ट पुट सब्जेक्ट डिवाइडेड। जैसे टेस्टिंग फॉर एग्जांपल, टेस्टिंग के लिए क्या रिसोर्सेज आपको देखने की ज़रूरत है, देन से केसेस और डेथ्स, सर्टिफिकेट्स, उस पर हमने डाला है। सोल्यूशंस पे डाला है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं पर सोल्यूशंस के बारे में बात नहीं करते। तो सोल्यूशंस के लिए आप न्यूट्रिशन के ज़रिए और लाइफस्टाइल माइंडसेट, उसके ज़रिए आप कैसे अपने हेल्थ और आउटकम्स को कंट्रोल कर सकते हो, उस पर हमने बहुत इन्फॉर्मेशन डाला है। तो मैं व्यूअर्स से अर्ज करूँगा कि आप प्लीज़, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, you can check out my work there. And thank you so much for having me again, Saurav. Pleasure, great pleasure to speak to you today. Great. So with that note, I would like to call off this session, and thank you so much everyone for joining. I have been seeing that more than 10, 15 people have been constantly listening. Thank you to everyone. And please, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेशन हम लोगों ने आज किया है। अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में इसके बारे में चर्चा कीजिए, लोगों को इसके बारे में अवेयर कीजिए, बिकॉज अवेयरनेस व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया बहुत ही कम है, और हमें इस चीज़ को फैलाना बहुत ज़रूरी है, लोगों को सही से इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वंस अगेन यूहान, and this is me Saurav signing off from our live session. Thank you so much everyone.